આવીને શું જોયું તો એને આપણે એક બધાના સામે મૂકી દઈએ કે આપણે અત્યારે વ્યવસ્થાની વાત કરીએ છીએ. તો જ્યારે વ્યવસ્થાની વાત કરીએ છીએ તો આપણે આપણા સામે 5 વ્યવસ્થાઓની વાત કરી રહ્યા છીએ કે એક તો છે સ્વયંમાં વ્યવસ્થા, બીજું છે પરિવારમાં વ્યવસ્થા, ત્રીજું છે સમાજમાં વ્યવસ્થા, ચોથું છે પ્રકૃતિમાં વ્યવસ્થા અને પાંચમું છે અસ્તિત્વમાં વ્યવસ્થા. તો જે સ્વયંના અંદર વ્યવસ્થાની વાત છે તો સ્વયંમાં વ્યવસ્થામાં આપણે એ જોયું કે હું જીવન છું, શરીરને ચલાવું છું. જીવન અને શરીર બે અલગ વસ્તુઓ છે અને જીવનની જરૂરિયાત અલગ છે અને શરીરની જરૂરિયાત અલગ છે. શરીરની જરૂરિયાત જે છે એ સામયિક છે અને માત્રાત્મક છે, પણ જીવનની જરૂરિયાત જે પણ છે એ ભાવની જરૂરિયાત છે અને નિરંતર છે. પછી આપણે જોયું કે જીવનની જરૂરિયાત નિરંતર છે તો શું છે, તો સુખ છે. આપણે એ પણ જોયું કે સુખને આપણે એને પરિભાષિત કઈ રીતે કર્યું, તો સુખને આપણે પરિભાષિત એ રીતે કર્યું કે સ્વીકૃતિ કે ભાવ મેં જીના ही सुख है આપણે કીધું. તો જ્યારે આપણે સ્વીકૃતિની વાત કરી ત્યારે સ્વીકૃતિ એટલે શું, તો સ્વીકૃતિ એટલે સ્વીકાર ભાવ. તો સ્વીકાર ભાવ એટલે કઈ વસ્તુનો સ્વીકાર ભાવની વાત કરીએ છીએ, તો આપણે પછી એના અંદર ગયા કે પરિવારના અંદર જ્યારે વ્યવસ્થાની વાત હોય છે ત્યારે સંબંધો આવે છે. તો સંબંધોની તો આપણે 7 અલગ અલગ જે આપણા સાથેના જે સંબંધો છે 7 જુદા જુદા આપણે સંબંધો જોયા. એ સંબંધો કયા મૂલ્યો પર આધારિત છે, એ મૂલ્યો જે છે એ મૂલ્યોની સ્વીકૃતિ જે છે એ જ સુખ છે. આપણે પછી એના આગળ એ જોયું કે મારા અંદર સમાધાન થઈ જાય અને એ મૂલ્યોની સ્વીકૃતિ થઈ જાય એ જ મારું સુખ છે. એમાં આપણે બધા અલગ અલગ જે મૂલ્યો જે છે એમાં જોયું તો વિશ્વાસ એટલે શું, પછી આપણે જોયું તો સન્માન એટલે શું, સ્નેહ એટલે શું, પછી મમતા એટલે શું, વાત્સલ્ય એટલે શું. તો દરેક વસ્તુ જોયું તો એ આપણે દરેક વસ્તુને આપણે સ્વીકૃતિના રૂપમાં જોયું કે ક્યાંક ના ક્યાંક અપેક્ષાઓ જે છે મારી સંબંધોના અંદર એ નિશ્ચિત છે અને એ નિશ્ચિત અપેક્ષાઓની જે મૂલ્યો જે છે તો એ મૂલ્યોની આપણે સ્વીકૃતિની વાત કરી કે એને આપણે આપણા અંદર એ જાણી પણ શકીએ છીએ કે ભાઈ હું વિશ્વાસપૂર્વક જીવી શકું છું તો એ વખતે મને સુખનો અનુભવ કે સુખની અનુભૂતિ થાય છે. જે વખતે મને સન્માન કોઈ આપે છે એ વખતે મને સુખની અનુભૂતિ થાય છે. એ જ રીતે આપણે બીજાને સન્માન આપીએ છીએ તો એ બીજાને પણ એ સુખની અનુભૂતિ થાય છે. તો આપણે જોયું કે મૂલ્યો. તો સ્વયંના અંદર વ્યવસ્થામાં આપણે જોયું કે અત્યાર સુધી આપણે ભ્રમવશ સુવિધાને સુખ માનીને આપણે આપણો કાર્યક્રમ આખો ચલાવ્યો છે અને સુવિધામાં સુખ નથી એ આપણને અત્યારે આમાં એકદમ સ્પષ્ટ થયું આપણા સામે. બીજી વસ્તુ કે આપણે જોયું તો જ્યારે સ્વયંના અંદર વ્યવસ્થા અને પરિવારના અંદર વ્યવસ્થાની આપણે વાત કરી તો હવે આપણા મગજમાં એક અહીંયાથી બહાર જઈએ એના પહેલાં આપણા મગજમાં એક પ્રશ્ન ઊભો થાય કે હવે આ સમજ્યા તો ખરા પણ આનો હવે કાર્યક્રમ શું છે, આગળ કરવાનું શું. એક એ તો સમજી તો લીધું પણ હવે કરવાનું એ જ છે કે આપણા અંદર જે ચિત્રણ અત્યાર સુધી જે માન્યતાઓથી ભરાયેલું છે એ માન્યતાઓના ચિત્રણને આપણે જાણવાનું છે. આપણે અત્યારે એની સમીક્ષા કરવાની છે, આપણે એને ચકાસવાનું છે કે જે માન્યતાઓથી હું જીવું છું દરેક ક્ષણ દરેક વસ્તુમાં જે દરેક સંબંધ છે કે દરેક મારા પોતાના જે વિચાર જે ચાલે છે, મારી ઈચ્છાઓ ચાલે છે, એ ઈચ્છાઓ ક્યાંથી આવી રહી છે. અત્યારે પહેલાં આપણું જે સૌથી પહેલાં જો ધ્યાન જશે કે હું પ્રિય હિત લાભમાંથી અત્યારે ઓપરેટ થઈ રહ્યો છું કે હું કઈ જગ્યાએથી ઓપરેટ થઈ રહ્યો છું, જ્યારે ધ્યાન જવાનું ચાલુ થશે એના પછી જ આપણે કોઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કે એ બધી વસ્તુઓની વાત કરી શકશું કે ભાઈ હું મારા જીવનમાં આ વસ્તુ ઉતારી શક્યો. અત્યારે આપણે એવું કહીશું કે ભાઈ મારે અત્યારે મારા વ્યવસાયમાં કે મારા જીવનમાં મારે આ ઉતારી દેવું છે તો એ એટલું પણ સરળ નથી અને એ એટલું પણ આમ ઇઝી નથી કે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આ થઈ ગયું એટલે મારું આમ થઈ જશે કે હું આ જીવન વિદ્યા શિબિર કરીને આવી ગયો એટલે તો હવે હું માનવમાંથી દેવ માનવ થવા લાગ્યો અને એવું બધું થઈ ગયું, એવું કશું નહીં થાય. આપણે અત્યારે પ્રેક્ટિકલ જોશું તો જ્યારે આ વાતાવરણ છે એ વાતાવરણે આપણને એક અનુકૂળતા આપી છે આપણા અંદર જોવાની, એક ચકાસવાની. આપણે એ જ વસ્તુ જ્યારે જોઈશું કે 3-4 દિવસ થઈ જશે બહાર ઘરમાં આપણે બધા પરિવારમાં અને ઓવરઓલ સમાજમાં જે રીતે આપણે જીવીએ છીએ આપણું નોર્મલ કાર્યક્રમ બધા ચાલુ થઈ જશે તો એ જ વખતે આપણને આ પ્રશ્નો ઊભા થશે કે આ તો બધું ભણીને આવ્યા પણ આ તો બહુ દિવસો રહેતું નથી. પણ એ એવું નથી રહેતું નથી, એના પાછળ સતત પ્રયત્ન કરવો છે, સતત ચિત્રણ બદલવું પડશે. આપણા કેટલા વર્ષોનું આપણું અત્યાર સુધી આપણે જે પણ માણસો જેટલા વર્ષના થયા છે એટલા વર્ષોથી આપણા અંદર જે ચિત્રણ પડ્યા જ રાખે છે પડ્યા જ રાખે છે પડ્યા જ રાખે છે, એ ચિત્રણના આધારે જે આપણે જીવી રહ્યા છીએ અને આપણે એવું ઈચ્છીએ કે ભાઈ મારું 7 દિવસમાં આખું ચિત્રણ બદલાઈ જાય તો એવું ના થાય.
એટલે એના માટે પણ આપણે પ્રયત્ન કરવો પડશે કે ભાઈ મારા ચિત્રણમાં જે વખતે મને એવો ભાવ પણ આવે છે કે ભાઈ આ જીવન વિદ્યાથી કાંઈ નથી થતું, એ વખતે પણ આપણે એ વિચારવાનું આવે કે ભાઈ મારા અંદર કઈ વસ્તુનો ભાવ ચાલી રહ્યો છે અને ક્યાંથી આવી રહ્યો છે, એ જ વસ્તુને એક ચકાસવાની જરૂર છે. એટલે આપણું જે ચિત્રણ બદલવાનું છે એ મેઇન એક આપણા પ્રમાણે જે કાર્યક્રમ જે છે એની વાત છે. એના પછી આપણે સમાજના અંદર વ્યવસ્થાની જે વાત કરીએ છીએ તો એની આજે વાત થશે કે સમાજમાં વ્યવસ્થા એટલે શું. તો પ્રકૃતિમાં વ્યવસ્થાની જ્યારે વાત કરી તો આપણે પ્રકૃતિમાં વ્યવસ્થામાં જે કીધું ગઈકાલે કે આપણે એને થોડા ભાગમાં લીધું છે, એને આપણે એક સળંગમાં નથી લીધું. તો પ્રકૃતિમાં જ્યારે વ્યવસ્થાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે 4 અવસ્થાઓ છે અને એ ચારે 4 અવસ્થાઓ પોતાના રૂપ, ગુણ, સ્વભાવ અને ધર્મ સાથે છે. ચારે 4 અવસ્થાઓ પોતાના રૂપ, ગુણ, સ્વભાવ અને ધર્મ સાથે છે. તો આપણે જે જોયું તો 3 અવસ્થાઓની જે વાત છે, જો તે પદાર્થ અવસ્થા છે, પ્રાણાવસ્થા છે, જીવ અવસ્થા છે અને જ્ઞાન અવસ્થા. તો પ્રાણ અવસ્થા, પદાર્થ અવસ્થા અને જીવ અવસ્થા એમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એનું આચરણ જે છે નિશ્ચિત છે અને એ આપણા અંદર સ્વીકાર પણ થાય છે કે હા એનું આચરણ નિશ્ચિત છે. કદી એવું નહીં થાય કે હું આજે પાણી પીઉં છું તો મારી પ્યાસ બુઝાવે છે અને કાલે પાણી પીઉં તો મને અંદરથી આગ લાગશે. પાણી એનું આચરણ નિશ્ચિત છે. એ દરેક વખતે જ્યારે માણસ પીશે તો એ એની તરસ જે છે એ તરસને જ એને પૂરી કરે છે. તો એ જ રીતે આપણે જ્યારે પ્રાણ અવસ્થાની વાત કરીએ છીએ તો પ્રાણ અવસ્થામાં જ્યારે કહીએ છીએ તો એ બીજ વિધિથી એનું આચરણ નિશ્ચિત છે કે આપણે કોઈ પણ ઝાડમાં કે કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણે એનો આંબાવના કે લીંબુ છે કે પછી સંતરું છે જેનો પણ આપણે એનો બીજ વાવીએ છીએ તો એનું જ ઝાડ આવે છે અને એનું આચરણ ત્યાં આગળ નિશ્ચિત છે. તો જીવ અવસ્થામાં જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે એનું આચરણ નિશ્ચિત છે કે કઈ રીતે નિશ્ચિત છે. તો એક તો છે કે વંશ પરંપરાથી તો નિશ્ચિત છે જ, એ તો માનવમાં પણ છે વંશ પરંપરાથી નિશ્ચિત. પણ એના સાથે સાથે કે એનો આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુન એના જે 4 વિષયો છે એ 4 વિષયો પણ એ રીતે નિશ્ચિત છે કે ભાઈ એને ખબર છે કે ભાઈ મારે ક્યારે સૂવું, મારે ક્યારે ખાવું, મારે શું ખાવું, મારે કેટલું ખાવું, આ બધી જ વસ્તુઓને એ લોકોનું એ રીતે આચરણ નિશ્ચિત છે. પણ જ્યારે આપણે માનવની વાત કરીએ તો માનવનું આચરણ નિશ્ચિત નથી. તો માનવને ક્યારે ખાવું, શું ખાવું, કેટલું ખાવું એ હજી સુધી આટલા વર્ષો પછી આપણે નક્કી નથી કરી શક્યા. એ નક્કી નથી કરી શક્યા એના પાછળના આપણે કારણ જોઈએ તો આપણે એ ક્યાંક ને ક્યાંક એ આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન એ ચારે ચારમાં આપણે આપણું સુખ જોવાની ટ્રાય કરીએ છીએ કે ભાઈ મને આમાં સુખ કેટલું મળે છે મને એમાં. એટલે એના અંદર આપણે પછી બહુભોગ અને અતિભોગમાં જતા રહ્યા અને બહુભોગ અને અતિભોગમાં ગયા એના પછી પણ મારે અંદરથી તૃપ્તિ ના થઈ અને તૃપ્તિ ના થઈ એટલે પછી બીજી બધી વસ્તુઓ, નવી ક્વોન્ટિટી, વેરાયટીના આ બધી વસ્તુઓમાં આપણે ગયા. તો એ માનવનું આચરણ નિશ્ચિત નથી. તો માનવનું જ્યારે આચરણ નિશ્ચિત નથી તો માનવનું આચરણ નિશ્ચિત કઈ રીતે થશે? તો માનવનું આચરણ નિશ્ચિત એ સંસ્કાર વિધિથી, આપણે શિક્ષા વિધિથી એ જ રીતે થશે. અને અત્યારે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સમસ્ત પ્રકૃતિ અત્યારે આપણે અગર આપણા સામે જોઈએ તો એ પ્રકૃતિમાં આપણે માનવ જ એકલો એવો છે કે જેને શિક્ષણની જરૂર છે, જેના માટે સ્કૂલ્સ છે, જેના માટે આપણે બધું શીખવાડી રહ્યા છે લોકોને કે મારી નેક્સ્ટ જનરેશન, મારી નેક્સ્ટ પેઢી આવે છે તો એને આપણે શીખવાડી રહ્યા છે. પણ અત્યારે જે આપણે શીખવાડી રહ્યા છે તો એવું નથી કે એ બધું ખોટું છે તો સાચું. પણ આપણે અત્યારે જે વાત કરી રહ્યા છે, જે સમજાવી રહ્યા છે, જે છોકરાઓને જે ભણાવી રહ્યા છે એ બધી જ વસ્તુ આપણે સ્કિલના આધાર પર અને સ્કિલના બેઝ ઉપર જ ભણાવી રહ્યા છીએ. જ્યાં અત્યારે આપણે એને કમ્પ્લીટ, એને કોમ્પ્લિમેન્ટરી આપણે જે સમજની વાત છે તો એ સમજ પણ આપવાની જરૂર છે. અને એ સમજની જે શિક્ષાની વાત છે તો એ આપણા શિક્ષાવિધિમાં એક વખતે લાવવાની જરૂર છે. તો જ એ પરંપરામાં ધીરે ધીરે આવશે કે માણસનું આચરણ, માનવીય આચરણની જે વાત છે તો એ અત્યારે આપણે જે જોઈએ તો આપણે ગઈકાલે જે 5 પ્રકારના માનવો જોયા તો એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે રાક્ષસ માનવને એ રીતે આપણે પોતાનું જ વિચારીએ છીએ. હજી આપણે સમાજનું તો ક્યાંય વિચારવાનું, ઘણા બહુ ઓછા લોકો છે કે જે અત્યારે વિચારી રહ્યા છે અને જે વિચારી રહ્યા પણ છે એમને પણ અંદર એક વખતે જોવાની જરૂર છે કે ભાઈ હું મારી જાત પર અત્યારે હું ક્યાં સ્ટેન્ડ કરું છું, કે હું સમાજમાં અત્યારે આપવા નીકળ્યો છું તો હું એક્ઝેક્ટલી હું પોતે કઈ જગ્યાએ છું, મારે એ પણ એક વખતે અંદર ચકાસવાની જરૂર છે. તો જે આચરણ જે નિશ્ચિત કરવાની વાત છે તો સૌથી પહેલાં તો આપણે માનવ બનવાની વાત છે ને એના પછી એક આગળના સ્ટેજની વાત છે કે ભાઈ દેવ માનવ કે દિવ્ય માનવ જે વાત છે તો એ આચરણ મારું નિશ્ચિત કરવાની વાત છે. તો પ્રકૃતિમાં વ્યવસ્થા જ્યારે જોવા ગયા તો એ વસ્તુ આપણને દેખાય કે ભાઈ 4 અવસ્થાઓ જે રૂપ, ગુણ, સ્વભાવ, ધર્મ સાથે છે. તો ધર્મની વાત કરી તો પદાર્થ અવસ્થા એના જે હોવાનું છે એ ધર્મ સાથે છે કે એનો કદી નાશ નથી અને એ કદી કોઈ જગ્યાએથી વસ્તુ પ્રગટ નહીં થઈ શકે, કે એ છે જ, એનું રૂપ બદલાઈ શકે છે, રૂપ બદલાય તો એનો ગુણ બદલાઈ શકે છે, પણ એનો સ્વભાવ જે છે સંગઠન વિઘટનનો અને એનો જે ધર્મ છે કે ભાઈ
હું છું તો હું હોવા સાથે જ કે મારું અસ્તિત્વ જે છે એ જ છે કે એ હોના ही એનું ધર્મ છે. આપણે જે કહીએ છીએ કે जिसको जिससे अलग नहीं किया जा सकता वही उसका धर्म है, આપણે જે કહીએ છીએ તો એ ધર્મ સાથે છે. એટલે એ પ્રકૃતિની વાત કરી. એના પછી આપણે જોઈએ તો અસ્તિત્વમાં આપણે આવ્યા તો અસ્તિત્વની વ્યવસ્થાની જ્યારે વાત કરીએ છીએ તો આપણે ગઈકાલે આખો દિવસ એક જ ચર્ચા પર એ રીતે એમ વાત કરી છે કે ભાઈ અસ્તિત્વમાં વ્યવસ્થા એટલે શું. તો અસ્તિત્વમાં જ્યારે વ્યવસ્થાની વાત કરીએ છીએ તો અસ્તિત્વમાં આપણને બે જ વસ્તુ દેખાય છે કે અને એ આપણા સામે આપણે જોઈ પણ શકીએ છીએ કે એક તો ખાલી જગ્યા કે ખાલી સ્થાન, આપણે જે પણ કહીએ છીએ કે ભાઈ સ્પેસ, જે આપણે અત્યારે એકદમ કોમન ભાષામાં આપણને સ્વીકાર છે તો એક સ્પેસ છે. અને બીજી ઇકાઈયા છે. ઇકાઈયા એટલે બેઝિકલી કે આપણે જે વસ્તુ હતી કે જે પણ વસ્તુનો આપણે આકાર છે, એનું આયતન છે અને એનું ઘન છે, એને આપણે અત્યારે કહીએ છીએ કે ઇકાઈ, કે જે વસ્તુને આપણે સીમામાં ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણે છીએ તો મારી સીમા શું, તો મારી સીમા એ મારી બોડીની રેખા છે, એ મારી સીમા. જ્યારે આ હોલની વાત કરીએ છીએ તો હોલની સીમા એટલે શું, કે આ હોલ એટલે એની સીમા. તો જે પણ સીમિત વસ્તુઓ છે કે જેને આપણે કહી શકીએ તો એને આપણે ઇકાઈ કહીએ છીએ, કે જેને આપણે ગણી શકીએ. ગણવાની આવશ્યકતા થાય છે કે નથી એ વસ્તુ આખી અલગ છે, પણ આપણે જેને એક અલગ અલગ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ એને આપણે કહીએ છીએ ઇકાઈ. તો એક સ્પેસ છે અને ઇકાઈ છે. એ હવે આપણે જોઈએ છે કે સ્પેસ જે છે તો એ સ્પેસ દરેક જગ્યાએ છે. એવી એક પણ જગ્યા નથી કે જ્યાં સ્પેસ નથી. આપણા કલ્પનામાં પણ એવું નથી આવતું કે ભાઈ અહીંયા સ્પેસ નથી. એટલે આપણે કલ્પનાશીલતાથી પણ આગળની વસ્તુ છે કે સ્પેસ જે છે કે આપણે જે ખાલી સ્થાન કે ખાલી જગ્યાની વાત કરીએ છીએ એ એટલી વ્યાપક છે, એટલી અસીમ છે કે એની આપણને સીમાની કોઈ અત્યારે આપણને એ આપણી કલ્પનામાં પણ નથી આવી શકતું. એટલે આપણે એને કહીએ છીએ કે અસીમ છે. આપણે બીજી વસ્તુની જ્યારે વાત કરીએ છીએ કે જ્યારે હવે ઇકાઈઓની વાત કરીએ છીએ તો ઇકાઈયા એવું નથી કે દરેક જગ્યા પર છે. ઇકાઈયામાં દરેક જગ્યા પર નથી. એવી જગ્યાઓ છે કે જ્યાં ફક્ત સ્પેસ છે અને એવી જગ્યાઓ છે જ્યાં આગળ સ્પેસ પણ છે અને ઇકાઈયા પણ છે. એવી કોઈ જગ્યા નથી કે જે જગ્યા પર ફક્ત ઇકાઈયા છે. અને આપણી કલ્પનામાં પણ એ વસ્તુ આવી નથી શકતી કે ભાઈ ઇકાઈયા ખાલી એટલે શું, તો આપણને અત્યારે એ કલ્પનામાં નથી આવતું. તો જ્યારે આપણે સ્પેસ અને ઇકાઈની વાત કરીએ છીએ ત્યારે એ બંને એક સાથે કોએક્ઝિસ્ટન્સમાં જ છે. એ બંને એક સાથે કોએક્ઝિસ્ટન્સમાં છે. એ કોએક્ઝિસ્ટન્સ છે, અસ્તિત્વ જે છે એ સહ અસ્તિત્વ છે. આપણે જે કહીએ છીએ કે અસ્તિત્વ સહ અસ્તિત્વ છે, તો સહ અસ્તિત્વનો મતલબ શું છે કે બંને એક સાથે છે અને બંને એકબીજાને એ રીતે છે જ. એટલે એ સહ અસ્તિત્વની વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ અસ્તિત્વ સહ અસ્તિત્વ ઈ છે, તો એ એક્ઝિસ્ટન્સ ઇઝ કોએક્ઝિસ્ટન્સ. એ બંને સાથે જ છે. એ વસ્તુ આપણે ગઈકાલે જોઈ. પછી બીજી વસ્તુ આપણે જોઈ કે ઇકાઈયા જે છે તો ઇકાઈયામાં પણ અત્યારે આપણે જોઈએ તો બે પ્રકારની ઇકાઈ છે. એક તો જડ ઇકાઈ છે અને એક તો ચૈતન્ય ઇકાઈ છે. જડ ઇકાઈ અને ચૈતન્ય ઇકાઈની જ્યારે વાત કરીએ તો પ્રકૃતિમાં જે પણ વ્યવસ્થાઓ જે છે, આ બધી જ વસ્તુઓ કે આપણે જે પણ પ્રકૃતિ બનેલી છે તો એ આખી પ્રકૃતિ જડ સંસારથી કે જડ વસ્તુથી બનેલી છે. એમાં ફક્ત જીવ અવસ્થા અને માનવ અવસ્થાની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ, જ્ઞાન અવસ્થા, તો એ જીવ અવસ્થા અને જ્ઞાન અવસ્થાને શરીરને ચલાવે છે, એ જીવન છે, એ જ એક ચૈતન્ય છે. અને એ ચૈતન્ય જે છે તો ચૈતન્ય અને જડની જ્યારે વાત કરીએ તો ચૈતન્ય જે એ સૂક્ષ્મ છે, એ એની ભાવની રીતે કે અત્યારે જે ચૈતન્યની વાત કરીએ તો એના અંદર હું તમને કહું કે જીવનની જે વાત છે એ જ ચૈતન્ય ઇકાઈ છે. અને ચૈતન્ય ઇકાઈ જે છે તો એના અંદર નિરંતર 10 ક્રિયાઓ જે છે એ ચાલી રહી છે. અને જ્યારે આપણે જડની વાત કરીએ છીએ તો એના અંદર એ ક્રિયાશીલતા તો છે, પણ ચૈતન્ય ઇકાઈના અંદર ભાવના રૂપમાં છે. અને એ 10 ક્રિયાઓ જે આપણે જોઈ કે ભાઈ માનવના અંદર વ્યવસ્થાની જ્યારે આપણે વાત કરી કે ત્યારે હું જીવન અને શરીર છું, તો જીવન જે છે તો એ જીવન એક 10 ક્રિયાઓનો સમૂહ છે. તો અત્યારે આપણે જે પણ આપણી માન્યતાઓ છે, જે પણ ચિત્રણ છે, એ ચિત્રણમાં આપણે સુવિધામાં ક્યાંક સુખ લેવાનું ટ્રાય કરીએ છીએ અને એ જ વસ્તુમાં આપણે જોયું તો આપણું ચિત્રણ એ જ વસ્તુથી ભરાઈ રહેલું છે. અને એમાં આપણે જોઈએ છીએ તો એ 10 ક્રિયાઓમાં આજે હું મારી જાતમાંથી અત્યારે 4.5 ક્રિયાઓ જ વ્યક્ત કરી શકું છું. મારું શરીર ખાલી ફક્ત 4.5 ક્રિયાઓ વ્યક્ત કરી શકે છે. 10 ક્રિયાઓ જ વ્યક્ત નથી કરી શકતું. ક્રિયાઓ તો સતત ચાલુ જ છે, પણ મારું જીવન છે, મારું જીવન છે એ મારા શરીર થ્રુ 4.5 ક્રિયાઓ જ વ્યક્ત કરી શકે છે. કારણ કે અત્યારે હું બ્રહ્મમાં છું કે ભાઈ સુખમાં સુવિધા છે, એ જ રીતે હું મારા બ્રહ્મમાં છું. જે વખતે આપણને સાક્ષાત્કાર અને બોધ થશે તો એ બોધથી આપણને એ વસ્તુ, આપણને જે વસ્તુ જેવી છે એવી દેખાવાની ચાલુ થશે. અને એના હિસાબથી જ આપણે આપણું વર્તન જે નિરંતર વસ્તુઓ છે, એ નિરંતર વસ્તુઓની સ્વીકૃતિઓ જે છે એ જ વસ્તુઓ હું તમને કહું કે બોધમાં જશે. અને બોધ પછી આપણે અનુભવ
જે મેળવવાની વાત છે કે ભાઈ આ આખું અસ્તિત્વ આપણા સામે એક ખુલી જાય છે અને આપણને એક અનુભવનો અહેસાસ થાય છે અને એ અનુભવ થાય છે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ અને જ્યારે અનુભવ થાય છે ત્યારે જાગૃતિ આપણે કહીએ છીએ કે જાગૃત માણસ છે અને એ જાગૃતિ એને પ્રમાણિત કરે છે અને એનાથી જ એક જાગૃત માનવની પરંપરાની જે વાત છે કે ભાઈ માનવ પરંપરાની વાત છે જાગૃત માનવ પહેલાં તો એ માનવ પરંપરા આપણે ધીરે 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 એ શિક્ષાવિધિથી લાવી શકશું અને શિક્ષાવિધિથી લાવશું ત્યારે જ માનવનું આચરણ નિશ્ચિત થશે અને એ જ આખો સંપૂર્ણ આખો કાર્યક્રમ છે. એમાં આપણા માટે અત્યારે કાર્યક્રમ એ નીકળે છે કે ભાઈ મારા સમજવામાં હજી કેટલું બાકી છે એ મારા અંદર હું નિરીક્ષણ કરું, મારા આજુબાજુ પરિવારમાં પણ એ કોઈ પણ વસ્તુ મને જે સમજમાં કે જે આવી છે તો એ નિરીક્ષણ કર્યા પછી એનું પરીક્ષણ કરું અને ઓવરઓલ આખા સમાજમાં એનું સર્વેક્ષણ કરું અને જોઉં કે ભાઈ હું પોતે ક્યાં છું અને મારી ગતિને આગળ વધારવા માટે હજી મારે કઈ કઈ વસ્તુની શું કરવાની જરૂર છે અને એ જ વસ્તુમાં આપણે ધીરે 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 જ્યારે આપણે પ્રશ્નમાંથી પ્રશ્ન મુક્તિ તરફ જઈશું ત્યારે આપણા અંદર સમાધાન થશે અને એ સાક્ષાત્કાર બોધપૂર્વક અનુભવની વાત છે. તો એ જ આખો કાર્યક્રમ છે. बहुत बढ़िया, शानदार. सभी को नमस्कार. भैया कैसा है बच्चा? बढ़िया है, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया, सूचना तो मिल ही गई थी. बताइए, 6 दिन में जितनी बात हुई है हिमांशु भाई ने पूरा का पूरा एक फ्लो में रख दिया. ये होती है जिम्मेदारी. जिम्मेदारी, देखिए भागीदारी होने से जिम्मेदारी का एहसास होता है. फिर ध्यान बना रहता है. तो जब जब आप भागीदारी के लिए निकलते हैं तो ऐसा नहीं है हम एकदम समझ जाएंगे तब पूरा जी लेंगे प्रमाणित कर लेंगे तो लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे. जितना जितना कंटेंट पे जितना जितना वस्तु पे आपको विश्वास बना है, देखिए कल चर्चा हो रही थी बोनी भाई से कि कहीं तक हम देख पाते हैं उसके बाद का अनुमान हो ही जाता है. हम इस दीवार के बाहर नहीं देख पा रहे हैं लेकिन जैसे भी अगल बगल देख रहे हैं उससे मेरा अनुमान बन रहा है कि आगे भी कोई पेड़ पौधे होंगे और आदमी होगा. तो एक अनुमान भी बनता है. वो अनुमान में ज्यादातर संभावना सही होने की होती है. तो बहुत अच्छा है. एक तो ये बात निकल के आई कि मानव 2 काम तो करेगा ही करेगा. पहला, सोचेगा ही सोचेगा. उसको सोचने से उसको अलग नहीं कर सकते आप. यहां बैठे हुए किसी आदमी को आप कहां बंद कर दें कि वो सोच विचार करना बंद कर दे? कमरे में, जेल में, कहां बंद कर देंगे? ये एक ही चीज है कि उसका शरीर शांत कर दीजिए तो शरीर शांत हो जाएगा, जीवन तब भी विचार में रहेगा. तो सोचना विचारना आपका बंद नहीं हो सकता. ये हमारे में प्राकृतिक विधि से हमारे में है कि हम सोचेंगे विचार करेंगे, सोचेंगे, सोचना विचारना चलेगा ही चलेगा. तो अब अच्छा, सोचता है फिर करता है, विचार करता है मतलब सोचता है फिर करता है. कोई भी कहे कि मैंने बिना सोचे कर दिया, ऐसा नहीं है. भले ही केवल आस्वादन चयन ही किया हो लेकिन किया है. सोचता है फिर करता है. तो अगर करने में करेक्शन करना है तो किस में करेक्शन करना पड़ेगा? सोच में, सोचने में. तो सोचने में करेक्शन का मतलब क्या है कि तो मानव सोचेगा ही सोचेगा. तो हम 6 दिन में क्या कर रहे हैं? सोचने का कंटेंट ही बदल रहे हैं. पिछले 6 दिन से इतने सारे लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं. आप लोग भी अपने अपने घर को छोड़कर, घर में तो ऐसे थोड़ी है कि ऐसे गद्दे पे दिन भर बैठे रहेंगे. घर में तो मन किया तो सोफे पे बैठे, छुट्टियां भी आपकी हैं. मन किया तो लेट गए, मन किया तो टीवी देखे, गाना सुने, कहीं घूम के आ गए. तो आप तो आप उन सुविधाओं को छोड़ के दिन भर बैठ भी रहे हो. इतना सारा संसाधन लगा है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं. तो क्या कर रहे हैं 6 दिन में? केवल आपके सोचने के कंटेंट में कुछ चीजें आ जाएं कि आप आहार निद्रा भय प्रजनन में ही केवल सोच रहे हैं. तो आहार निद्रा भय प्रजनन आवश्यक है
लेकिन केवल वही सोच रहे हैं, केवल वही सोच रहे हैं, उससे हमारा आज तक पूरा पड़ा नहीं। तो ध्यान क्या जाता है कि वो सामयिक आवश्यकता है, आहार की भी, निद्रा की भी, भय की भी, प्रजनन की भी, ये चारों आवश्यकताएं सामयिक हैं, टाइम टू टाइम है। तो इसलिए कितना भी हम इस पे सोचेंगे, ये जरूरत तो मेरी टाइम ही लगेगी। तो फिर बोला नहीं, मैं सोच तो निरंतर रहा हूं। तो आप बैठे बैठे भी दुखी हो सकते हैं या कहीं घूम फिर के दुखी होंगे। किसी के साथ बात करके दुखी होते हैं या अकेले बैठे बैठे भी आप दुखी हो सकते हैं। शिवांश, अकेले बैठे बैठे भी हो सकते हैं। क्यों? तो सुखी दुखी होना ये मेरे विचार के आधार पे होता है। मेरे में भाव की स्थिरता नहीं है, इसलिए मेरे विचार में कुछ भी आता है और मैं अपने विचारों से ही सुखी दुखी होता हूं। मैंने किसी के साथ व्यवहार किया और उसका व्यवहार मुझे स्वीकृत नहीं हुआ। मैं किसी के साथ जीने गया, व्यवहार किया, बातचीत किया, संवाद किया, यही तो व्यवहार है। अब उसका व्यवहार मुझे स्वीकृत नहीं हुआ, मतलब मूल्य स्वीकृत नहीं हुआ। तो मूल्य स्वीकृत नहीं हुआ तो मैं अब क्या कर रहा हूं? विचारों में ही उसको ला रहा हूं और सुखी और दुखी विचारों में ही हो रहा हूं। तो हमेशा सुखी और दुखी तो मैं विचार में ही होता हूं। कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा है, कोई मेरे बारे में कुछ कहा, या तो मुझसे डायरेक्ट कहा या किसी के थ्रू कहा। उसने आके बताया, भैया आपको पता नहीं है वो आदमी आपके बारे में क्या कह रहा था। हाँ, इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं चुगली चुगली। ये बहुत फेमस गेम है। हाँ, हर पुरुष महिला इस काम को करने में मजा आता है। क्यों अमिता? तो भैया आपको पता नहीं वो आदमी आपके बारे में ये कह रहा था। अच्छा, वो कह रहा था, अच्छा अब क्या हो गया? अब मेरे विचार में कुछ चलने लगा, वो आदमी तो खराब है, बेकार है, वो तो किसी के काम नहीं आया, हमारे काम क्या आएगा, वो तो दुखी रहने के लिए, दुखी करने के लिए पैदा हुआ है, उसका तो जन्म ही इसीलिए हुआ है, वो तो समझेगा ही नहीं, इस जन्म में नहीं समझेगा, जाने दीजिए उसको, क्या करेंगे क्या करेंगे। फिर सोच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, फिर सोच रहे हैं जाने दो, छोड़ो, वो तो सबको दुखी करता है, जाने दो, उसकी आदत ही है। तो क्या कर रहे हैं? अपने अंदर सुखी होने का कोई ना कोई जस्टिफिकेशन ला रहे हैं, नहीं मैं तो ठीक ही हूं, उसके कहने से थोड़ी खराब हो गया हूं। तो फिर अंदर से आता, नहीं नहीं हो सकता सही कहा हो, अपने विचार को देखो, अच्छा मैं गलत भी हो सकता, नहीं नहीं मैं ठीक ही हूं, नहीं मैं ठीक। क्या चल रहा है? ये सब आपके विचार में ही चल रहा है। तो आपके सुखी दुखी होने का कारण आपका विचार ही है, कोई बाहर की घटना नहीं है। आप बाहर की घटना से प्रभावित हो रहे हो, तो क्या क्या चीजों से प्रभावित होते हैं हम वातावरण से प्रभावित होते हैं और निसर्ग से प्रभावित, इसको निसर्ग बोलते हैं, जो नियम से है, प्राकृतिक व्यवस्था, इसको हिंदी में निसर्ग बोलते हैं। यहां भी चलता है निसर्ग शब्द, नैसर्गिकता मतलब निसर्ग। तो निसर्ग से प्रभावित होते हैं या वातावरण से प्रभावित होते हैं। ठंडी हो गई, अरे बहुत ठंडी है, इस साल तो बहुत ठंडी है, पिछले साल इतनी नहीं थी, और तब तक टीवी में न्यूज आ गया, इस साल जो है इस क्षेत्र की सबसे तेज ठंडी है। अच्छा, अब हम क्या प्रभावित हो रहे हैं? ठंडी से। अरे ठंडी में ठंडी ही आएगी। ठंडी के सीजन में ठंडी ही पड़नी है, वो एक प्राकृतिक व्यवस्था है, वो नेचर की आवश्यकता है। भाई धरती का, प्रकृति का व्यवस्था बने रहने के लिए हर तरह की वनस्पतियों को बीज वृक्ष विधि से प्रमाणित होने के लिए अलग अलग मौसम में आवश्यकता है। 4 अवस्थाएं बनी रहे, इसके लिए अलग अलग मौसम आवश्यकता है, जिससे कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी, अलग अलग के प्रकार के पदार्थ, ये सब नियम पूर्वक स्वयं को व्यक्त करते रहे। इसके लिए मौसम बदलेगा ही बदलेगा। नहीं जी बहुत गर्मी है, अरे बहुत गर्मी है, क्या बताया जाए, एकदम गर्मी है, रहा नहीं जा रहा है, ये तो गर्मी भी मार डालेगी। तो गर्मी नहीं मार रही है, मेरा विचार मुझे मार रहा है। गर्मी तो पड़ेगी पड़ेगी, गर्मी में गर्मी पड़ेगी, आवश्यक भी है। गर्मी नहीं पड़ेगी तो बारिश कैसे होगी? गर्मी नहीं पड़ेगी तो बारिश कैसे होगी? बारिश नहीं होगी तो धरती कैसे नहाएगी? हम कैसे नहाएंगे? हम क्या पिएंगे खाएंगे? तो हम क्या है,
चर्चा में मौसम को, वातावरण को लाते हैं, निसर्ग को ले आते हैं। देखो जी, बुलबुल तूफान आ गया, वहां पर कितनी तबाही हो जाएगी। जाके समुंदर के पेट में घर बना के रह रहे हैं, समुंदर के पेट में, माने समुंदर की जो जगह है उसके अंदर घुस के घर बना के रह रहे हैं। बोल रहे जी बुलबुल तूफान ने परेशान कर दिया। क्या जरूरत थी वहां जाने की? तो वहां जा रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए अंदर तक चले गए, बताया भी गया बुलबुल तूफान आ रहा है, फिर भी जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? तूफान का दोष है कि मानव की मानसिकता का दोष है? तटीय इलाकों में घर कैसे बनाने चाहिए वैसा ही बनाना चाहिए। तो हमारे विचार का मामला है सारा। तो जब भी मानव में बदलाव होगा तो उसके विचार में ही होगा। विचार में बदलाव कब होगा? जब भाव स्थिर। विचार बदलाव का मतलब विचार में निश्चितता। बदलने का मतलब ये नहीं है आज ये विचार है कल वो विचार हो जाएगा, परसों फिर वो होगा, अगले दिन फिर अगला हो जाएगा, फिर जिंदगी में हम विचार ही बदलते रहेंगे। तो विचार में जो बदलाव की बात कर रहे हैं उसका मतलब है विचार में निश्चितता, जिससे कि आचरण में निश्चितता आए। तो विचार में निश्चितता तभी होगी जब भाव को पहचानेंगे, भाव में स्थिरता मेरे में हो जाएगी, मेरे अंदर ही विश्वास, सम्मान, मेरे अंदर ही स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम पूर्वक जीने लगूंगा तो मेरे अंदर ही भाव की स्थिरता आती है। मेरे अंदर में जितना जितना भाव स्थिर होने लगते हैं, जितना जितना भाव को बाहर ढूंढने के सारे हमारे प्रयास बंद होते हैं, मैं अपने भाव का आस्वादन कर पाता हूं। संबंध में जीता हूं तो अपने अंदर ही भाव का आस्वादन करता हूं, क्योंकि भाव मेरे में है। तो जब जब मैं संबंध में जीता हूं तो मेरे अंदर भाव पहचान में आते हैं, मैं उसका आस्वादन करता हूं, सुखी होता हूं। तो अगर किसी संबंध में मुझे भाव का आस्वादन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है मेरे अंदर ही मैंने उसको पहचाना नहीं है। न्याय नहीं हो रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन भाव तो पहचाना। तो भाव की स्थिरता होती है तो मैं भाव पूर्वक जीने लगता हूं, मैं स्वीकृतियों के साथ हो जाता हूं, तब मेरे विचार में निश्चितता आती है। ऐसा होने से मेरा कार्य व्यवहार संतुलित हो जाता है। संतुलित का मतलब मेरे लिए भी सुखदायी हो जाता है, जिसके साथ जीता हूं उसके लिए भी सुखदायी हो जाता है, और निसर्ग के लिए भी पूरक हो जाता है। तो हम निसर्ग से प्रभावित होते हैं और वातावरण से प्रभावित होते हैं, इन्हीं दो से प्रभावित होते हैं। देखो जी समाज ऐसा है, समाज तो बिगड़ गया, समाज तो बिगड़ गया, ये वाला समाज बिगड़ गया, वो वाला समाज बिगड़ गया, हिंदू समाज बिगड़ गया, मुस्लिम समाज बिगड़ गया, पाटीदार समाज बिगड़ गया, ब्राह्मण समाज बिगड़ गया। मतलब जाति में, धर्म में, देश में, सारी चीजों में। ठीक है, पुरुष बिगड़ गया, महिलाएं ठीक है, महिलाएं बिगड़ गई, पुरुष ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं हम? इसी की चर्चा में, वातावरण की चर्चा में सारा समय लगा रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं। ये प्रभावित होना मतलब ये है कि हम परतंत्र हैं। मैं परतंत्र हूं क्योंकि मैं प्रभावित होकर जी रहा हूं। तो समझ आएगा तो मैं समीक्षा कर पाऊंगा, तो मैं लोगों के साथ कैसा जी पाऊंगा, तो दयापूर्वक जी पाऊंगा। मानव क्या है? या तो व्यवस्था में होगा या तो नहीं होगा। भाई मानव अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा मतलब व्यवस्थित होगा, बुरा मतलब व्यवस्थित नहीं होगा। अच्छा होगा तो मेरी उसकी पूरकता हो पाएगी, बुरा होगा नहीं हो पाएगी, तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं दयापूर्वक जीऊंगा। अरे ये तो ऐसा ही है, इसको समझ ही नहीं है, ये ऐसा ही है, क्या करेंगे? देखा जाएगा, इनको भी किसी शिविर में भेजेंगे। कोई बात धीरे से करेंगे, कोई बात रखेंगे, कोई समझ की वस्तु रखेंगे, धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये भी मानव है। और सबसे अच्छी बात है, मानव के सामने जब भी सही का प्रस्ताव रखिए वो स्वीकारता ही है। मानव को सही स्वीकार ही होता है। जी भैया। संकल्प और ऋतुम्बरा के बारे में कुछ अभी? ये नाम है, मैं उस दिन भी बताया था। एक क्रिया तो हुई। हाँ हाँ, तो संकल्प को बोला, ये क्रिया है संकल्प। संकल्प को यहां लिखा था संकल्प, कल्प यानी कल्पना,
सम यानी पूर्णता के अर्थ में। तो मेरी अब जो मतलब कल्पना है, अच्छा चित्रण जो शुरू होता है वही वो स्टेज। जी जी, संकल्प से ही होता है। बोध होता है, तो बोध होता है तो मेरी जो सारी कल्पनाशीलता यहाँ तक ये इच्छा विचार आशा के रूप में है, ये यहाँ से ड्राइव होने लगती है। अर्थात मेरी सारी कल्पना पूर्णता के अर्थ में हो जाती है। पूर्णता क्या है? पूर्णता क्या है? तो अभी तक हमने एक ही पूर्ण चीज को पहचाना है, वो है व्यापक, वो है स्पेस। वो अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण है। पूर्णता का प्रमाण क्या है? कि वो स्थिर है, वो शांत है, वो अक्रिय है, वो निष्क्रिय है, वो क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य का मतलब ही है वो पूर्ण है। जो पूर्ण नहीं है उसमें क्रिया है, जो पूर्ण है उसमें क्रिया की आवश्यकता ही नहीं है। तो पूर्ण वस्तु को पहचाना, तो पूर्ण वस्तु को पहचाना, तो पूर्ण वस्तु में बाकी सारी वस्तुएं भी डूबी है, भीगी है, घिरी है, इसलिए बाकी सारी वस्तुओं में भी पूर्णता की प्यास है। तो अब क्या है? उस पूर्णता के अर्थ में मेरी कल्पना हो गई, सह अस्तित्व के अर्थ में मेरी कल्पना हो गई। तो क्या हो गया? ईश्वर कुछ करता नहीं है, ईश्वर में होने से सब होता है। अगर ईश्वर के रूप में हमने व्यापक को पहचाना, स्पेस को पहचाना, तो स्पेस में होने से सब होता है, स्पेस करता नहीं है। स्पेस में होने से सब होता है। सारी क्रियाएं स्पेस में होने के कारण हो ही रही हैं। इसीलिए बोला स्पेस महाकारण है। क्योंकि जीवन को देखने गए तो जीवन में शरीर सबसे स्थूल है, उसमें सूक्ष्म ये 4.5 क्रिया है। कारण ये है क्योंकि कारण पता चलता है तो सूक्ष्म व्यवस्थित होता है, तब स्थूल व्यवस्थित होता है। कारण नहीं पता है तो सूक्ष्म व्यवस्थित नहीं होता, इसलिए स्थूल व्यवस्थित नहीं होता। हम दिन भर 24 घंटे स्थूल को व्यवस्थित करना चाह रहे हैं, जबकि सूक्ष्म में व्यवस्थित नहीं है। सूक्ष्म क्यों नहीं व्यवस्थित है? क्योंकि कारण ही नहीं पता। और इस कारण से भी सूक्ष्म क्या है? तो महाकारण है। तो महाकारण में अनुभव होते हैं। तो मैं पूर्णता का अनुभव करने के लिए प्यासा हूं, मैं पूर्णता का अनुभव करने के लिए तृषित हूं, प्यासा हूं। और पूर्णता का अनुभव करने के लिए क्यों प्यासा हूं? क्योंकि मैं पूर्णता में ही डूबा हूं, भीगा हूं, पूर्ण वस्तु में ही डूबा हूं, भीगा हूं, घिरा हूं। इसलिए मेरी प्यास पूर्णता की है। मैं पूर्ण होना चाहता हूं, मैं पूर्ण होना चाहता हूं, मैं पूर्ण होना चाहता हूं। क्योंकि मैं पूर्ण में ही हूं, इसलिए मैं पूर्ण होना चाहता हूं। तो 3 तरह की पूर्णता बताई। गठन पूर्णता जिसको जीवन बोलते हैं, क्रिया पूर्णता जिसमें 10 क्रिया पूर्ण हो जाए, उसके बाद आचरण पूर्णता कि मैं जो क्रिया पूर्णता हो गई मैं उसको जी के प्रमाणित भी कर ले गया, तो आचरण पूर्णता। तो मानव के रूप में मेरे में गठन पूर्णता, देव मानव के रूप में क्रिया पूर्णता, और दिव्य मानव में आचरण पूर्णता हो जाती है, अर्थात वो पूर्ण हो जाता है। दिव्य मानव पद को हम पाना चाहते हैं जिससे हम पूर्ण हो जाएं, और पद मुक्ति हो जाती है। फिर पद का भी भाव खत्म ही है तो पद मुक्ति हो जाती है। तो हम सभी पद मुक्त होना चाहते हैं। यहां पे गठन पूर्णता, यहां पे गठन पूर्णता इधर है ही है, मतलब ये सारे में गठन पूर्णता है, मानव में आके प्रमाणित होती है। फिर क्रिया पूर्णता, फिर आचरण पूर्णता। आचरण पूर्णता होते ही हम पद मुक्त हो जाते हैं। दिव्य मानव पद में, दिव्य मानव पद नहीं है, फिर दिव्य मानव होने का मतलब हम पद मुक्त हो गए। तो अस्तित्व में 2 पद हैं, मानव पद और देव मानव पद। तो अभी हम प्रयास करके जो अनुभव संपन्न होंगे तो हम मानव पद में जाएंगे। उस अनुभव संपन्न होकर के जीना शुरू करेंगे तो देव मानव पद में जाएंगे, जी के प्रमाणित कर ले जाएंगे। अच्छा, जैसा मैंने समझा था वैसा ही है, जैसा मैंने समझा था वैसा ही है। ऐसा मैंने प्रकृति के साथ श्रम किया तो कर्माभ्यास किया, मानव के साथ श्रम किया तो व्यवहाराभ्यास किया। तो जैसा मैं अनुभव में देखा था वैसा मैंने कर्माभ्यास व्यवहाराभ्यास में पाया भी तो प्रमाणित हो गया, तो मैं पद मुक्त हो गया। इसी को मोक्ष बोला। पद मुक्ति ही मोक्ष है। पद मुक्त हो गया। अब शरीर मेरा मर्जी है, तब मैं क्या हुआ? अब मैं स्वतंत्र हो गया। मेरा मन करेगा शरीर चलाऊंगा, मेरा मन नहीं करेगा नहीं चलाऊंगा। अब शरीर मेरे लिए बाध्यता नहीं है। लेकिन जब तक आहार निद्रा भय प्रजनन से सुखी होने का प्रयास है तब तक शरीर मेरी बाध्यता है, क्योंकि ये चारों क्रिया मैं शरीर के द्वारा ही कर पाऊंगा। तो अगर सुखी होने का प्रयास आहार निद्रा भय प्रजनन, आहार निद्रा भय प्रजनन ही है, तब तक शरीर चलाना मेरी बाध्यता है।
तो शरीर चलाना बुरी बात नहीं है, प्रयोजन पता हो, ये शरीर चला के मैं समझना चाहता हूं, जीना चाहता हूं, समझ के जी के प्रमाणित कर लिया तो अब आवश्यकता ही नहीं बनती शरीर की। उसको बोला जीवन जागृत हो गया। जब जागृत हो गया तो फिर क्या है, जो जागृत हो गया फिर थोड़ी सोएगा, फिर थोड़ी आहार निद्रा, तो आहार निद्रा भय प्रजनन क्या हो गया, अब नियंत्रित हो गया। तो नियंत्रित करने की कोशिश से नियंत्रित नहीं होता। हाँ, अब आहार को नियंत्रित करने लग जाइए, निद्रा को, भय को, प्रजनन को। अब नियंत्रित करने से नहीं होगा। कोई वस्तु मिलती है तो अपने आप ये, तो जैसे ही कारण बुद्धि, कारण क्रिया मेरी शुरू हो जाती है, वैसे ही मेरी सूक्ष्म क्रिया नियंत्रित हो जाती है। जैसे ही मेरी सूक्ष्म क्रिया नियंत्रित होती है, मेरी स्थूल क्रिया स्वतः नियंत्रित हो जाती है। तो नियंत्रण के लिए प्रयास नहीं है, समझ के लिए प्रयास है। बहुत खुश हो रहे हो नियति। समझ के लिए प्रयास है, नियंत्रण के लिए प्रयास नहीं है। नियंत्रण करके देख लिया, पूरी दुनिया में नियम बनाया, कानून बनाया, मानव ने बहुत सारे कानून बनाए, इतने कानून बनाए, इतने कानून बनाए कि मानव को मानव मार देगा ऐसा भी कानून बनाए। एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया, अब उसकी जान चली गई, उस आदमी को हम जेल में डाल दिए, जेल में डाल के उस पर मुकदमा चला, मुकदमा में फैसला आया इसको भी मार दो। तो एक ने किसी भ्रमवश गलतीवश मार दिया, हमने नियम पूर्वक उसको भी मार दिया, ऐसा कानून बना दिए। तो ये क्या चीज हो गया, अपराध को अपराध से रोकना। ये रुकता नहीं है। अब कानून बनाए, सबसे कठिन कानून क्या बनाए, मृत्युदंड। बोले जी गलत काम करोगे तो मृत्युदंड मिलेगा। क्या गलत काम करोगे, किसी को मारोगे, आतंकवाद, ये अपराध, वो अपराध, इसमें मृत्युदंड मिलेगा। अब लो हो गया, जिसको हम आतंकवाद के लिए, जिसके लिए मृत्युदंड बोल रहे हैं, वो आतंकवादी पहले ही से अपने पेट में बम बांध के आ रहा है, अब दो मृत्युदंड। उसको क्या मृत्युदंड देंगे आप। इसका मतलब है मानव में जब भी बदलाव आएगा शिक्षा विधि से आएगा। धरती पे जब भी मानव में बदलाव आएगा शिक्षा विधि से आएगा। और कोई विधि हो तो बताइए। मानव ने प्रयास करके देख लिया, आज तक सारी विधियां असफल हुई। मानव मूलतः शासन चाहता ही नहीं है। मानव में मौलिकता है, वो शासन विधि से नियंत्रित हो ही नहीं सकता। जब भी होगा स्वनियंत्रित होगा। और स्वनियंत्रित, जैसे जैसे आपके घर में बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा जिसको बोलते हैं ना आप समझदार हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब उसके अंदर स्वनियंत्रण आता है। भले आपके सामने ही थोड़ा दिखाने का ही आ जाए, घर के बाहर जाने पे वो पर नियंत्रण हो जाए, लेकिन कब हम बोलते हैं अच्छा अब ये ठीक हो गया, अब समझदार हो गया, अब ये रोड पे साइकिल चला सकता है, अब ये रोड पे गाड़ी चला सकता है, अब ये रोड पे कार चला सकता है। कैसे आपको लगा, अब ये थोड़ा समझदार हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये स्वनियंत्रित हो गया है। तो हम स्वनियंत्रण की प्रयास है, ऐसा करते करते मानव स्वनियंत्रित हो जाए। इसके लिए शिक्षा ही एक माध्यम है, और कोई माध्यम आज तक सफल हुआ नहीं। करके और देख लिया जाए, सफल नहीं होगा। कितना कड़ा कानून बनाएंगे, कितना कड़ा कानून बनाएंगे। सबसे बड़ा कानून है आदमी को मार देना, इससे बड़ा कड़ा क्या कानून है। उस कानून को भी कोई मतलब ही नहीं है, आदमी पहले से मरने को तैयार है। भाई जब देखिए कहीं से आपका कोई जुड़ाव हो जाता है, कोई चित्रण आप में बहुत ही तगड़ा बैठ जाता है, ऐसी स्थिति में आदमी तो मरना। अब हमने सुना है भगत सिंह को तो फांसी स्वीकार थी, लो दो फांसी। वो क्या चीज था, देश के प्रति हम, देश के लिए हमको जीना है। और अगर देश में ही संकट है तो हम मर के भी दिखाएंगे, देखो हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो क्या हो गया, आदमी को मृत्यु से भय है नहीं है। एक समय तक लगता है, लेकिन जब एक, जैसे वो बोल रहे थे, एक भाई वहां बोल रहे थे, एक महिला को सांप से डर लगता है, लेकिन उसके बच्चे के पास ही सांप आ गया, अब उसका मृत्यु भय कहां चला गया। तो एक्चुअली मानव को मृत्यु भय उस तरह का है भी नहीं। अब वो संबंध कैसा है उसकी बात आ जाती है। तो भय से अभी हमने तीन तरह से, तीन डंडों से मानव को चलाने की कोशिश किया है। पूरी हर घर में यही चल रहा है, हर स्कूल में यही चल रहा है, हर धार्मिक संस्था में चल रहा है, सरकार भी वैसा ही डंडा चला रही है। उनमें से कोई एक डंडा सक्रिय रहता है या तीनों रहता है, वो है भय, प्रलोभन और आस्था। अभी तक हमने इन तीन डंडों से समस्त मानव जाति को हाँकने की कोशिश किया है, चलाने की कोशिश किया है, और मानव जाति इसमें असफल हुई है। भय से चलाने की कोशिश किया,
ये ना करो, वो ना करो, ऐसा करोगे तो ये कानून है, वैसा करोगे तो ये कानून है, ऐसा करोगे तो गिर जाओगे, ऐसा करोगे तो मर जाओगे, ऐसा करोगे तो जेल चले जाओगे। ये क्या चीज है? ये भय है। भय से नियंत्रित करने की कोशिश। गलत काम करोगे तो नरक में जाओगे, सही काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये क्या है? लालच है, प्रलोभन है। चलो चलो भाई, बहुत बढ़िया है, हम बिजली फ्री में देंगे, पानी फ्री में देंगे। ये क्या है? प्रलोभन ही है। तुम हमको क्या दो? तुम हमको वोट दो। तभी सरकार की क्या स्थिति है? सरकार वोट से बनती है, और सरकार वोट से बनती है तो वोटर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। ज्ञान के अर्थ में नहीं, सुविधा के अर्थ में। तो हमको भ्रम है कि दुनिया भर की सरकारें हमको ज्ञान संपन्न बनाना चाहती हैं। ऐसा नहीं है। जिस समय पूरी दुनिया के मानव ज्ञान संपन्न हो जाएंगे, उस समय दुनिया में किसी सरकार की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी इस तरह के नेतृत्व की आवश्यकता नहीं होगी जो नेतृत्व के नाम पे, राजनीति के नाम पे दुकान चलाते हैं। वो आवश्यकता ही बंद हो जाएगी। इसलिए भ्रम है कि कोई सरकार हमको समझदार बनाना चाहती है। सरकार शिक्षा की व्यवस्था उतनी ही करती है कि उसको अपने काम के लिए योग्य कर्मचारी मिल जाए और उत्पादन के लिए योग्य कर्मचारी मिल जाए, बस उतना ही शिक्षा आपके लिए प्रोवाइड कराएगी। पूरी दुनिया में शिक्षा का भी यही उद्देश्य माना गया। इसीलिए आप देखिए, एक समय में समाज शिक्षा की व्यवस्था करता था, उसके बाद बड़े बड़े औद्योगिक घराने शिक्षा की व्यवस्था करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको उद्योग चलाने के लिए कुशल लोग चाहिए थे, जो कि उस शिक्षा पद्धति से निकल के आ नहीं पा रहे थे। तो औद्योगिक घरानों ने स्कूल चलाना शुरू किया, जिससे कि उन स्कूलों से हमको योग्य कर्मचारी, योग्य वर्कर मिल सके। अब धीरे धीरे करके वहां से भी शिफ्ट हो गया। अब तो स्कूल दुकान हो गई है, तो अब दुकान चला रहे हैं। तो जितने लोग पहले दुकान चलाते थे, वही लोग अब स्कूल चला रहे हैं, तो स्कूल भी दुकान की तरह चला रहे हैं। तो मथुरा में एक ब्रज क्षेत्र शिक्षा कायाकल्प कार्यक्रम है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। 180 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने का लोगों ने योजना बनाया है। तो ज्यादातर वहां के जो व्यवसायी लोग हैं, जैसे वहां एक मथुरा और उस क्षेत्र के सबसे बड़े ज्वेलर हैं, नारायण दास ज्वेलर। तो उनके मतलब काफी बड़ा उनका ज्वेलरी का काम है, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी सब एरिया में मिला करके। तो वो यूनिवर्सिटी चलाते हैं। तो 200 एकड़ में यूनिवर्सिटी है, मतलब 2 यूनिवर्सिटी उनकी चलती है। फिर सारा ही पढ़ाई होती है उसके अंदर, KG to PG। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें से बहुत सारे लोग तैयार हुए कि हम भी इसमें काम करेंगे। तो उसमें सारे लोग बैठे थे, तो हमने उसी सभा में बोल दिया, देखिए अपने को क्या है, अपने तो सही बात बोलेंगे। आप सुनने की आपकी स्थिति है तो ठीक है, नहीं सुनने की स्थिति तो हम क्या करें। तो मैंने सही बात बोल दिया। बोले जी शिक्षा में बहुत गड़बड़ है, सरकारी शिक्षा बहुत गड़बड़ है। तो हमने कहा प्राइवेट शिक्षा अच्छी है? बोले हाँ जी अच्छी है। हमने कहा उस सबको मिल सकती है? अगर प्राइवेट शिक्षा अच्छी है, सबको मिल सकती है? नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि वो लाभ के लिए खोली गई है। वो लाभ के लिए खोली गई है, वो समाज कल्याण के लिए नहीं खोली गई है। तो हमने कहा यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सब लोग कोई न कोई दुकान चलाते हैं, चला भी रहे हैं। तो इन लोगों स्कूल भी चलाने लगे, तो स्कूल भी दुकान की तरह ही चलाते हैं। अभ्यास वही है। तो पहले धार्मिक संस्थाएं स्कूल चलाती थी, फिर सामाजिक संस्थाएं स्कूल चलाने लगी, फिर व्यापारी घराने चलाने लगे, अब एक एक आदमी चलाने लगा दुकान की तरह। और नई शिक्षा नीति जो भी आई है, उसमें लिखा हुआ है, जो के कस्तूरी रंगन जी जो कि इसरो के चीफ रहे हैं, उनके नेतृत्व में नई शिक्षा नीति की समिति बनी थी। उसमें लिखा है, आप पढ़िए प्रस्तावना में ही, अभी शिक्षा पूरी तरह से बाजारीकरण हो गया है। शिक्षा नहीं हो रही है, शिक्षा की दुकानें चल रही हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूं, अब वो नई शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। फिर बोलता है जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बीएड की ट्रेनिंग देते हैं, डीएलएड की ट्रेनिंग देते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट केवल और केवल डिग्री बेचने की दुकानें हैं। इनमें शिक्षक नहीं तैयार होते, यहाँ केवल डिग्रियां बिक रही हैं। एडमिशन ले लो, आओ ना आओ, बस टाइम टाइम पे पैसा पहुंचाते रहो, डिग्री आके ले जाओ। ये उस सरकारी डॉक्यूमेंट में लिखा है।
तो कुल मिलाकर के शिक्षा को लेकर के हमारी दृष्टि ही ठीक नहीं है, मेरा यह कहने का आशय है कि शिक्षा को लेकर के मेरी दृष्टि में दोष है। दृष्टि क्या है? शिक्षा भी मेरे दृष्टि प्रिय लाभ ही चल रहा है, न्याय धर्म सत्य चल नहीं रहा है। इसीलिए शिक्षा में भी हम प्रलोभन ही दे रहे हैं, पढ़ लो क्या हो जाओगे, कुछ बन जाओगे। तो बच्चों से हम बात करते हैं स्कूलों में, दिल्ली में जा जाके जब करते थे तो बोलते थे आप क्यों पढ़ने आते हो। हैप्पीनेस कैरिकुलम की शुरुआत ही हमने फिर यहीं से किया। जब पूरे दिल्ली में बात किया तो शुरुआत ही यहीं से किया कि क्लासरूम में बच्चों से पूछा जाए वो क्यों पढ़ना चाहते हैं। पूछते थे क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो बोलते थे कि मैं कुछ बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहते हो? तब बोले डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, एक्टर। ठीक है, उसमें दिल्ली में एक्टर भी बनने के लिए बच्चे बोले, हालांकि सामान्यतः क्लास में नहीं बोलते, बोले एक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, व्यवसायी बनना चाहते हैं। कुछ बच्चे बोले सेना में जाना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं। हमने कहा सैनिक बन के क्या करोगे? बोला देखो जी सैनिक बनेंगे और पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। हमने कहा अच्छा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो? बोले फिर हमको ठीक हो जाएगा। हमने कहा उसके बाद कोई देश है? बोले हाँ होगा। हमने कहा फिर वो अगर दिक्कत करेगा? बोले उसको भी खत्म कर देंगे। हमने कहा फिर उसके बाद कोई देश आएगा? बोले आएगा। हमने कहा वो गड़बड़ करेगा तो? बोला तब तक तो हम नहीं रहेंगे जिंदा। तो ऐसी ऐसी दृष्टि से बच्चे बोलते हैं। तो हमने पूछा आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? सारी बातें पूछने पे बच्चे बोलते हैं इसमें कमाई अच्छा है, पैसा बढ़िया आता है। तो हमने कहा तो क्या होगा? तो बोले पैसा बढ़िया आएगा, कमाई बढ़िया होगी तो मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? मम्मी पापा के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों? मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो। क्यों डॉक्टर साहब आपके मम्मी पापा खुश हो गए? खुश हो जाएंगे। तो हमने बोला आपके मम्मी पापा खुश हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? बोले मैं खुश हो जाऊंगा। हमने कहा भैया तो सीधे बोलो आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? अपनी खुशी के लिए। तो हमने कहा जिस ढंग से आप पढ़ रहे हो उसमें खुशी की संभावना है? जो लोग पढ़ लिख लिए वो खुश हो गए? तब सोचने लगते हैं हाँ ये बात तो है। हमने कहा जिनको जो पद मिल गया उस पद पे जाके खुशी हो गए, जिनको धन ज्यादा मिल गया वो धन को पाके खुश हो गए। अब मुद्दा सोचने का गया। तो एक्चुअली वो जो काम हम कर रहे हैं उस काम में कोई निश्चितता ही नहीं दिखती हमको जब आगे बात करते हैं, जबकि हम निश्चितता चाहते हैं। तो भय, प्रलोभन, आस्था, ये तीन विधियों से हमने अभी तक मानव समाज को हांका है, चलाया है, ठेला है, धकेला है, झेला है। आस्था क्या चीज है? कि बिना जाने किसी को बड़ा मान लेना, किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष को, किसी परंपरा को तो जांचा नहीं। भाई देखो ये है, ये बड़ी चीज है, मैं कोई ऊंची चीज हूं, आप मान लो। देखो सब लोग आते हैं, सब लोग देखो कितने लोग आते हैं मेरे यहाँ, देखो ना इतने सारे लोग आते हैं, तो मैं बड़ा हूं कि नहीं हूं? देखो मैं ऊंचे पर खड़ा भी हूं, मैं बड़ा हूं कि नहीं हूं? देखो मैं बड़ी कुर्सी पे बैठूंगा, मैं बड़ा हूं कि नहीं हूं? तो धीरे धीरे करके लोग बोलते हैं हाँ जी आप बड़े हो, प्रणाम। तो अब क्या करो? आशीर्वाद। आप मेरी बात को मानो क्योंकि मैं बड़ा हूं, आप मेरी बात को मानो, मैं बड़ा हूं। कैसे बड़ा हूं? तो कोई न कोई आस्था पूर्वक हम अपने को, मैं पिता हूं इसलिए बड़ा हूं, पिता हूं नहीं पिता हूं। तो मैं पिता हूं इसलिए बड़ा हूं, मैंने तुमको जन्म दिया है इसलिए बड़ा हूं, मैं माँ हूं इसलिए बड़ा हूं, मैं बड़ा भाई हूं इसलिए बड़ा हूं, मैं गुरु हूं तुम्हारा इसलिए बड़ा हूं। बड़प्पन कोई दिख ही नहीं रहा है। बड़े हैं तो बड़प्पन भी होना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा हमने आपसे ही तो सीखा है। तो बड़प्पन नहीं दिख रहा है, लेकिन बड़ा हूं इसी को बोलते हैं आस्था विधि से समाज को हाँकना। शिक्षा का क्या काम है? तो शिक्षा जो भय मुक्त करे, शिक्षा जो भय मुक्त करे, शिक्षा जो प्रलोभन मुक्त करे, शिक्षा जो आस्था पूर्वक नहीं विश्वास पूर्वक जीना सिखाए। शिक्षा इन तीनों को, ये तीनों है इसका मतलब शिक्षा नहीं है। भय है तो शिक्षा किस बात का? लालच में हम फंसे हुए हैं इसका मतलब मेरे ही अपने स्किल पे विश्वास नहीं है। तो प्रलोभन मुक्त हो जाएंगे, आस्था के बजाय हम विश्वास पूर्वक जिएंगे, इसको शिक्षा बोलते हैं। तो सूत्र तो दिया, कामना के रूप में किया, सा विद्या या विमुक्तये।
विद्या क्या है? जो हमें मुक्त कर दे, हमें मोक्ष प्रदान कर दे। तो विद्या मोक्ष कैसे प्रदान करेगी? जब मेरे भाव की स्थिरता आ जाएगी, मेरे अंदर न्याय धर्म सत्य दृष्टि की उदय होगी, साक्षात्कार चिंतन पूर्वक मैं जीने लगूंगा, बोध हो जाएगा, मैं ज्ञान संपन्न हो जाऊंगा, तब मैं अप्रभावित होकर जी सकूंगा। तो मुझे किसी का पद, किसी का रूप, किसी का धन, किसी का बल, ये मुझे प्रभावित नहीं करेगा। तो मैं अप्रभावित होकर जीऊंगा। तो मैं वातावरण के नियम को पहचान के जीऊंगा। तो मैं निसर्ग से प्रभावित नहीं होऊंगा और मैं वातावरण से भी प्रभावित नहीं होऊंगा। तो मैं अप्रभावित होकर जीऊंगा। यही मेरी स्वतंत्रता है। ऐसा ही हम सब होना चाहते हैं। तो शिक्षा का मतलब ही है भय प्रलोभन आस्था से मुक्त हो जाना। अगर हम किसी भय प्रलोभन आस्था में हैं, इसका मतलब हमारी शिक्षा हुई है कि नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि समझ के साथ जब मानव जीने जाएगा तो उसका आचरण कैसा होगा? मानवीयतापूर्ण आचरण को पहचानना। कैसे पहचानेंगे? हम स्वयं को भी कैसे पहचानेंगे कि मेरा आचरण मानवीयतापूर्ण हो गया है? दूसरे के भी आचरण को मैं कैसे जान पाऊंगा, पहचान पाऊंगा कि उसका आचरण मानवीयतापूर्ण हो गया है? तो इसमें तीन चीजें आती हैं मानवीयतापूर्ण आचरण में। एक आता है मूल्य, दूसरा आता है चरित्र, और तीसरी आती है नैतिकता। तो मानव मानवीयतापूर्ण जिएगा तो कैसे जिएगा? मूल्य चरित्र नैतिकता पूर्वक जिएगा। तो अब क्या पर बात करना है? अब इन तीनों पे बात करना पड़ेगा। तो मूल्य पे बात हो गई है। कितने मूल्यों पे बात हुई थी? 18 मूल्य, 9 स्थापित और 9 शिष्ट मूल्य, और 4 यहां मूल्य हैं जिनको जीवन मूल्य बोलते हैं। सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये जीवन में है, इसलिए इसको जीवन मूल्य बोलते हैं। तो 18 मूल्य जो है, 18 मूल्य ये मानव मानव व्यवहार में है। 9 शिष्ट और 9 स्थापित, 9 शिष्ट, और 4 मूल्य ये जीवन मूल्य हैं, और 6 मूल्य मानव मूल्य होते हैं, और 2 मूल्य प्रकृति में होते हैं। कुल मिला के 30 मूल्य होते हैं। तो 6 जो मानव मूल्य हैं उनको बोलते हैं धीरता, वीरता, उदारता। ये मानवीयता के स्तर में है। जब यही अति मानवीयता के स्तर में जाते हैं, यानी देव मानव दिव्य मानव में, तो 3 और जुड़ जाते हैं, दया, कृपा, करुणा। इसको बोलते हैं मानव मूल्य। मूल्य का मतलब अपेक्षाएं, यानी मानव की उपयोगिता। तो जीवन की उपयोगिता कब होगी? जब वो सुख, शांति, संतोष, आनंद पूर्वक जिएगा, तब जीवन उपयोगी हो पाएगा, तब वो जीवन मूल्यवान हो जाएगा। बोलते नहीं जी आपका जीवन बहुत अमूल्य है, यानी मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है कि उसका मूल्य नहीं लगा सकते। तो कब जीवन मूल्यवान हो पाएगा? जब वो मूल्यों के साथ होगा। और मूल्य क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद इसके साथ है, तब जीवन मूल्यवान है। अर्थात तब वो जीवन उपयोगी हो पाएगा, आपके लिए भी और मानवीयता के लिए भी, आपके संबंधी के लिए भी। मानव कब उपयोगी हो पाएगा? जब उसके अंदर ये 6 मूल्य होंगे। कैसे होंगे? तो धीरता मतलब, धीरता मतलब बढ़िया, बच्चे की सूचना मिल गई, कल ही मिली थी, आज आप लोगों से भी मिल गई। हाँ जी बताइए, आपका धैर्य बना रहा, धीरता बनी रही कि अधीर हुए आप? थोड़ा तो अधीरता हुई होगी, क्योंकि पहले तो नियम ही नहीं जान पाए कि कितनी चोट लग गई, क्योंकि पंखे में इतना तेज आवाज आया और उसके साथ ही बच्चे के रोने की आवाज आई। तो अब एकदम से मतलब मैं भी नहीं समझ पाया कि कितनी चोट लग, इतनी ज्यादा नहीं है। चलिए बढ़िया है। तो धीरता क्या है? धीरता
हाँ जी, कोई बताइए। शिवांश, माइक दो। हाँ जी, कहाँ पर? हाँ, वीरता यानी किसी भी परिस्थिति में सहज भाव में रहना, उसको स्वीकारना, लेकिन जो बढ़िया। हम करते हैं उसमें सहज भाव में रहना, क्योंकि हमें पता है उस कैसे हुआ, क्या हुआ और अब क्या होगा, वो इमरजेंसी समझ जाना और सहज भाव में रहना। बहुत बढ़िया। जितना चाहिए उतनी ही प्रतिक्रिया देना। तो जो आपने बाद में कहा बात, वो वस्तु है क्या? कि जब मुझे समझ आ जाता है क्या क्यों कैसे, तभी मेरे धीर होने की संभावना है। अगर मुझे समझ नहीं है क्या है क्यों है कैसे है, तो मेरे में धीरता की कोई संभावना नहीं है। तो धीरता की परिभाषा आती है, न्याय में निष्ठा ही धीरता है। न्याय में निष्ठा कब आती है? जब बोध, साक्षात्कार बोध पूर्वक जीते हैं, मेरी दृष्टि में न्याय आ जाता है। इसलिए बोला समझ होती है तो धीरता होता है। तो मैं किसी के साथ धीरता पूर्वक जी पाता हूं, तो उसके किसी भी एक्शन के प्रति जो आप बोल रहे हैं रिएक्शन नहीं आता, मैं समझ पाता हूं, सुन पाता हूं। तो मैं सुनता हूं, पहली बार तो मैं सुनता हूं, सुन करके तब मैं अपना सुझाव रखता हूं, और सुझाव रखते समय मैं वीर होता हूं, मेरे अंदर वीरता आती है। वीरता है तो मैं जी पाता हूं। तो धीरता का यानी न्याय में निष्ठा, वीरता का यानी तो जो मैंने अपने अंदर धीरता को पहचाना है, अब उसके अनुसार मैं जीता हूं, उसके अनुसार मैं आगे का कार्य करता हूं, ये वीरता है। तो वीरता यानी किसी को मारना नहीं। अच्छा, बच्चे छूटे हैं। तो धीरता का मतलब हुआ कि मैं समझ गया। तो पहले तो अपने अंदर धीरता क्या आएगी, अगर इसको और बढ़िया से परिभाषित करते हैं तो मेरे अंदर अभी क्या धीरता आएगी? तो अभी मेरे अंदर समझने के प्रति जो निष्ठा है उसको धीरता बोलेंगे। मैं समझ सकता हूं, उसके लिए मैं लगा हूं। तो आप पिछले 6 दिन से धीरता का ही परिचय दे रहे हैं। आप सुन रहे हैं, जिज्ञासा रख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिज्ञासा रख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर जिज्ञासा रख रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं, फिर जिज्ञासा रख रहे हैं, फिर सुन रहे हैं, फिर जिज्ञासा रख रहे हैं। यह क्या चीज है? यह धीरता है। तो समझने के लिए भी धीरता की आवश्यकता। फिर जब जीते हैं तो वीरता होती है। अब जी रहे हैं, जीने के प्रति सामने वाले को सुन पाना। तो कल बोला था कि सुन पाना ही वीरता है। सुन पाना, इसी को बोलते हैं स्पेस देना, जो नियति बोल रही थी। स्पेस देना, भाई सुनना, वो भी मानव है, किसी परेशानी के साथ है, कोई समस्या है, उसको सुनना। समाधान है तो अच्छी बात है, नहीं तो बताना, अगला शिविर कर लेना मतलब किसी व्यक्ति का पता बताना जो समझदार हो, उससे उसको कनेक्ट कराना, यही वीरता है। स्पेस देना, सुनना, बात करना, संवाद करना, वस्तु को रखना, समझ के लिए प्रस्तुत होना, यह वीरता है। और उदारता क्या है? इसके लिए अपना तन मन धन लगा देना। तो मानव समाधान संपन्न हो जाए, मैं समाधान संपन्न हो जाऊं, मैं समझ संपन्न हो जाऊं, मेरे में क्या क्यों कैसे का उत्तर आ जाए, दूसरे भी समझ संपन्न हो जाएं, दूसरों को भी क्या क्यों कैसे का उत्तर मिल जाए, इसके लिए तन मन धन लगा देना, यह है उदारता। सामान बांट देना उदारता नहीं है। सामान बांट देंगे, वो कल फिर आपका इंतजार करेगा। अब भैया आ रहे होंगे, टाइम हो गया है, कंबल लेके आ रहे होंगे, खाना लेके आ रहे होंगे, उसकी दरिद्रता कहां गई? वो तो बनी हुई है, आपका इंतजार कर रहा है। तो वस्तु के अर्थ में उदारता है ही नहीं है। उदारता जब भी होगी ज्ञान के अर्थ में होगी। ठीक है, अभी कोई अभाव में है तो हम देंगे, अब ऐसा नहीं कि जाके काम बंद कर देंगे। मतलब हमको जो तृप्ति के लिए वो काम करेंगे, लेकिन उससे उसका पूरा होने वाला नहीं है। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो भीख ही मांगेगा।
तो भीख मांगना भी एक व्यवसाय हो गया, एक कैरियर हो गया। तो उदारता क्या हुआ? उदारता हमने समझ के अर्थ में नहीं किया। तो उदारता जब भी होगी समझ के अर्थ में होगी। उसके लिए मैं तन को लगाऊंगा, अपने समझ के लिए, दूसरों के समझ के लिए, अपने तन को, मन को, यानी जीवन को और धन को, जो मेरे पास संसाधन है उसको भी लगाऊंगा। अच्छा, मानव समझदार हो जाए, क्यों करूंगा मैं? क्योंकि मेरी जरूरत है। मेरी जरूरत है कि मेरे परिवार के लोग, मेरी सोसाइटी के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे शहर के लोग समझदार हो जाएं। ये मेरी जरूरत है। उससे मेरा जीना आसान हो जाएगा। तो मैं अपनी इस आवश्यकता के पूर्ति के लिए, अर्थात मैं अपनी इस तृप्ति के लिए तन मन धन को लगाता हूं। यही उदारता है, यही उदारता है। तो धीरता, वीरता, उदारता ये समझ के अर्थ में है। समझने के लिए धीर होना, और फिर किसी के साथ संवाद करने के लिए, समझाने के लिए वीरता की आवश्यकता है। और वीरता की आवश्यकता है नहीं कि उसको मार पीट के समझा देना। वीरता की आवश्यकता का मतलब यह हुआ, मैं धीर हूं तो दूसरे को सुन सकता हूं, समझ सकता हूं, अपना प्रस्ताव रख सकता हूं। तो मैं पिछले 6 दिन से आपके साथ वीरता पूर्वक ही प्रस्तुत हो रहा हूं। कोई कोई बोलते हैं तो 15 मिनट ही बोलते हैं, लेकिन सुनते हैं। बीच में रोकना रहता है, रोक भी लेते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं आगे और बताइए, आगे आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। सब बोले, सबके लिए स्पेस है। तो इस सभा में सबके लिए स्पेस है कि नहीं है? इस सभा में सबके लिए स्पेस है। और स्पेस क्या है? पारदर्शी है। तो सभा पारदर्शी हो जाती है, तो लोग अपनी बात को कहते हैं, खुल के कहते हैं। झारखंड में एक शिविर ले रहा था, तो उसमें एक जैन समाज, जैन धर्मशाला नहीं, उस समय जैन धर्मशाला में नहीं था, एक नंदन पहाड़ है वहां पे एक शिविर हो रहा था। तो उसमें एक जो झारखंड दिगंबर जैन समाज के जो वो कमेटी होती है उसके अध्यक्ष हैं पूरे राज्य के, और उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। एक होते हैं ना दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, उनको भी मिला हुआ है। तो कोई उनसे कहा कि एक शिविर हो रहा है, उनके एक कोठारी, वहाँ कोठारी लोग हैं जो वही लोग उस शिविर को शुरू में आयोजित करवाए। मतलब वो लोग उसमें आए, फिर और लोग आए, फिर धीरे धीरे करके तो वो उनको बुलाए कि भैया आ जाओ ऐसा, और आप भी सुन लो, एक बात हो रही है। तो एक दिन आए तो 1-1.5 घंटा बैठे रहे, 1-1.5 घंटा बाद वो चले गए। दूसरे दिन सुबह ही आ गए नाश्ते के समय, और पूरे दिन रहे। तीसरे दिन आए तो उनको लगा कि अब आगे और कंटेंट होगा, आके एकदम सुबह ही बैठ गए, नाश्ते के पहले ही आ गए, बैठ गए। तो उस दिन पता चला कि शिविर आज नहीं है, आज तो लोग अपना अपना फीडबैक देंगे, अभिप्राय देंगे। तो बोले ठीक है, मैं अभिप्राय ही सुनता हूं। तो अभिप्राय सुनने लगे सबका। तो कोई अपना बात बता रहा था, मेरे में क्या बदलाव दिख रहा है, क्योंकि वो तीसरा शिविर था वहां, मेरा ही तीसरा शिविर था। बहुत सारे लोग जो थे जो तीसरा शिविर कर रहे थे, तो मेरे में क्या बदलाव है, सारी बातें कर रहे थे। फिर मेरा भी परिवार गया था, तो मेरी पत्नी ने भी अपना अभिप्राय रखा, बेटी ने भी रखा, बेटे ने रखा। तो जब पत्नी ने अभिप्राय रखा अपना कि मैं जो इतने साल से, जब मतलब मुझे क्या क्या दिक्कतें होती थी, जब ये भाग भाग के बाहर जाते थे, मैं कितना गुस्सा होती थी, और फिर धीरे धीरे करके मैं कैसे हम एक प्लेटफार्म पे आ पाए, और अब हम कितना बढ़िया जी रहे हैं, उस बात को उन्होंने कहने लगे। तो वो उठ के आ गए, आ करके वो माइक ले लिए और वो रोना शुरू कर दिए। क्या बोलते हैं कि मेरी पत्नी का निधन 10 साल पहले हो गया, 8 साल पहले हो गया, और मेरे दोनों बेटे हैं, वो मेरा बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, केवल मुझे ब्लैकमेल करते हैं पैसे के लिए, कुछ ना कुछ धमकी देके ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि मुझे उनकी सेवा चाहिए, इसलिए मैं ब्लैकमेल होता हूं। आज मुझे इस सभा में लग रहा है कि मैं कितना गरीब इंसान हूं, कितना गरीब हूं मैं, और रोना शुरू कर दिया। तो जब वो सभा हो गई, तो जो उनको बुलाए थे वो बाद में ऐसे बैठे थे, जब शिविर पूरा हो गया, उसके बाद मेरी ट्रेन रात शाम को थी, तो बाद में बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो हैं जैन साहब, ये पिछले 10 साल से मेरे मित्र हैं,
मतलब 10 साल से देवघर आ रहे हैं, मित्र तो पहले से हैं, लेकिन मुझे खुद भी पता नहीं था कि अपने बच्चों से इतना पीड़ित है ये। किसी से नहीं कहा इन्होंने, इस सभा में खड़े होकर बोल दिए। तब हमने कहा भैया देखिए, ये सभा में स्पेस है, और स्पेस क्या है? पारदर्शी है। तो सभा जब पारदर्शी हो जाती है तो मानव पारदर्शिता पूर्वक अपनी बात रख ही पाता है। संभावना रहती समाधान की तब रख पाता है। पारदर्शिता का मतलब ही समाधान की संभावना है। तो आप पिछले 6 दिन से धीरता पूर्वक प्रस्तुत हो रहे हैं, और मैं भी धीरता पूर्वक प्रस्तुत हो रहा हूं, मतलब मैं भी आपको स्पेस दे ही रहा हूं। स्पेस दे रहा हूं क्या? स्पेस है ही आपके पास, मैं दे कहा रहा हूं, स्पेस उपलब्ध है, और स्पेस पारदर्शी है। उस पारदर्शिता में मैं जब आप बोलते हैं तो जितना आप बोलते हैं उतना तो सुनता हूं, लेकिन जो आप बोल नहीं रहे हैं वो भी दिखता ही है। और उसके बाद मैं कोई बात को कहता हूं, आप बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं उसको भी सुनता हूं। यह वीरता है। नहीं जी आप बैठो, कैसे खड़े हो गए? बैठो, आपकी बारी नहीं आई थी। तो अभी हम इसको वीरता मानते हैं। ये वीरता नहीं है। तो वीरता का मतलब समझ के अर्थ में, जीने के अर्थ में होती है। अभी हमने शब्दों के अर्थ खो दिए हैं, सही अर्थ के साथ हम नहीं हैं। हम पिछले 6 दिन से क्या कर रहे हैं? शब्दों का सही अर्थ ढूंढ रहे हैं, शब्दों के सही अर्थ ढूंढ रहे हैं। जिज्ञासा कितना बढ़िया शब्द है, जिज्ञासा। तो जीने के ज्ञान के संदर्भ में आशा। मैं पूछ रहा हूं, क्यों पूछ रहा हूं? जीने के लिए पूछ रहा हूं। मुझे जीने का ज्ञान चाहिए, उसके संदर्भ में आशान्वित हूं, और मुझे लगता है आप बता सकते हो। तो उसको क्या नाम बोला? जिज्ञासा। अब जिज्ञासा परिभाषित हो गई। तो पिछले 6 दिन से हम केवल शब्दों के सही अर्थ ही ढूंढ रहे हैं, और उससे इंगित वस्तु भी मुझे झलक मिल ही रही है। कोई कोई वस्तु पहुंच भी पा रहे हैं। अपनी अपनी सबकी गति है, अपनी अपनी सबकी यात्रा है। कुछ लोग को वस्तु भी दिख जा रही होगी, वास्तविकता भी कुछ लोगों को नहीं दिखती होगी। जिनको नहीं दिखती उनको आगे दिख जाएगी, क्योंकि संभावना तो सब में है, क्योंकि सब अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। क्या चीज का अंतर है? ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है। जिनका ध्यान जाएगा, जो न्याय धर्म सत्य दृष्टि जिनकी होती जाएगी, उनको भी समझ में आता ही जाएगा, वस्तु दिखता ही जाएगा। अब अगला आता है दया। दया क्या है? दया क्या है? कोई नया शब्द तो नहीं है ना आपके लिए दया, लेकिन बोलेंगे शब्द, हर शब्दों का आप ऐसा अर्थ दे रहे हो तो हम क्या बोले। हेलो, हाँ जी, दया एक भाव है। हाँ पहले- भाव तो है ही है जी। पहले हम किसी पर दया आती है हमें, बराबर, तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, और उसके बारे में हम क्या करना चाहते हैं वो सोचते हैं, और उसका परिणाम क्या आएगा वो भी अंदर एक विचार होता है। तो हम अस्पष्ट हो जाते हैं, क्या करें। तो जो हम दया को सही तरह से समझ सकेंगे, तो उसके बाद जो परिणाम आएगा उससे भी हम सुख पाएंगे, जो भी करेंगे उससे भी सुख पाएंगे। उसको देंगे तो भी सुख, न देंगे तो भी सुख, हमें परिणाम की अच्छा। कोई चिंता नहीं होगी। बढ़िया। हाँ जी, और कोई परिभाषा यहां दी गई इस कंटेंट में, दया की परिभाषा जो इस कंटेंट में दी गई है, पात्रता के अनुरूप वस्तु उपलब्ध करा देना दया है। जैसे जैसे किसी को कंप्यूटर चलाना आता है, उसको कंप्यूटर उपलब्ध करा देना, ये दया है। अब ये वस्तु के संदर्भ में है, साधनों के संदर्भ में है, लेकिन उदाहरण साधनों से लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो परिभाषा दी गई साधनों के अर्थ में ही नहीं दी गई है, ज्ञान के अर्थ में दी गई है। आपकी पात्रता है, आपकी पात्रता है, समझ नाम की वस्तु भी है। तो कोई व्यक्ति आपकी पात्रता को पहचानता है और वो समझ आपको उपलब्ध करा देता है, यही दया है। तो आपके पास, आपके साथ दया पूर्वक जीता हूं, इसका मतलब क्या है? मैं समझ का प्रस्ताव रखते हुए जीता हूं। आप अपनी मौज में हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझ का प्रस्ताव रखता हूं। कैसे रखता हूं?
कोई बोल के रखूंगा जरूरी नहीं है, मैं जी करके आचरण से भी रखूंगा प्रस्ताव। तो समझ कोई चीज है और उसकी पात्रता आप सब में है ही है। कब पता चलता है? जब जीवन पता चलता है कि जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है और हर मानव समझना ही चाहता है। जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है और हर मानव समझना ही चाहता है। इसके प्रति जब मेरे में निश्चितता आती है तो मैं आपके सामने समझ का प्रस्ताव रखता हूं। यही दया है, यही दया है। कृपा क्या है? तो कृपा इसका उल्टा है। वस्तु उपलब्ध है, पात्रता ही नहीं है। जैसे ये ज्ञान, जो ज्ञान की बात हम पिछले 6 दिन से कर रहे हैं, ये ज्ञान उपलब्ध है, अब विसनगर में भी उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे लोगों की पात्रता ही नहीं है। तो वस्तु समीचीन है, उपलब्ध है, आ गई है, अनुसंधान हो चुका है, सम्मुख है, लेकिन ध्यान ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है। तो पात्रता विकसित कर देना कृपा है। मेरे पे कृपा करो, यानी मेरे में पात्रता विकसित कर दो। तो मानव जो है वो दया पूर्वक जीता है, देव मानव कृपा पूर्वक जीता है, क्योंकि देव मानव किसी भी चीज को आचरण से बताता है। तो पात्रता हमेशा आचरण से विकसित होती है, आपके भाषण से विकसित नहीं होती। आप जीते हो तो पात्रता, अपने परिवार में वैसे आचरण के साथ आते हैं तो परिवार की पात्रता विकसित होती है। तब परिवार कहता हाँ जी अच्छा है, ये तो शिविर अच्छा है, हम भी करेंगे, बढ़िया है ठीक लग रहा है, आप में कुछ तो बदलाव दिख रहा है। क्यों ऐसा जी? ऐसा लगता है तो मेरी पात्रता विकसित होती है। अच्छा बढ़िया है भाई शिविर, लेकिन मेरे भाषण में बदलाव हो गया। देखो जी मैं जीवन विद्या शिविर से आया हूं, अब हमसे थोड़ा ठीक से बात करना हाँ 1 डिग्री और मेरी जुड़ गई है बहुत सारी डिग्रियां जो फाइल में थी उसमें 1 डिग्री और जुड़ गई है, मैंने जीवन विद्या शिविर किया हुआ है, अब हमसे थोड़ा ठीक से बात करना तो अगले की पात्रता जिंदगी भर विकसित नहीं होगी। तो मैं शिविर में आया हूं, लोग बोलते हैं भैया कितने शिविर के बाद समझ में आ जाएगा? तो मैं उत्तर देता हूं, मैं शिविर में आया हूं, मैं शिविर में आया हूं, मैं शिविर में आया हूं, अगले शिविर में आया हूं, 2 शिविर में आया हूं, 4 शिविर में आया हूं, 8 शिविर में आया हूं, 50 शिविर में आया हूं। आप शिविर में आए हैं, शिविर आपके अंदर गया है कि नहीं गया है? पता चलता शिविर में मैं आया हूं, शिविर मेरे में गया ही नहीं है तो जितना जितना आप में शिविर जाएगा उतना उतना आप में गुणात्मक परिवर्तन आएगा, उतना उतना आपके आचरण में आएगा, उतना उतना आप दूसरों की पात्रता विकसित कर सकते हो। तो कितने शिविर में आ रहे हैं इसकी गिनती से मतलब नहीं होगा, आपके अंदर कितना शिविर जा रहा है उससे पात्रता विकसित होती है जिसके साथ हम जीते हैं। इसका मतलब मैं उसके साथ कृपा पूर्वक जीता हूं। पात्रता विकसित करा देना। अब जैसे कंप्यूटर वाला उदाहरण है, कंप्यूटर उपलब्ध है, यहां 20-25 कंप्यूटर रखा हुआ है, लेकिन जो 4 लोग बैठे हैं उनको चलाना ही नहीं आता तो क्या करेंगे? उनको चलाना सिखा दे, वस्तु तो उपलब्ध है। तो वैसे ही ये ज्ञान समझ, अस्तित्व कोई चीज है, अस्तित्व सह अस्तित्व है, उसमें इकाइयां हैं, व्यापक है, व्यापक और इकाइयों का सह अस्तित्व है। व्यापक में देखेंगे तो क्रिया शून्य है, इकाइयों को देखेंगे तो क्रियाशील है। क्रियाशील क्या है? तो क्रियाशील जड़ पदार्थ भी है, क्रियाशील चैतन्य पदार्थ भी है। जड़ पदार्थ में भौतिक रासायनिक क्रिया है, चैतन्य पदार्थ में जीवन क्रिया है। जीवन समझता है तो सह अस्तित्व को समझता है, जीवन समझता है तो संपृक्तता को समझता है, तो भौतिक पदार्थों का उपयोग करता है, भौतिक पदार्थों का उपयोग करता है और मानव के साथ, प्रकृति के साथ प्रयोजन पूर्ण जीता है। ये समझ उपलब्ध है, ये समझ उपलब्ध है। इसके लिए पात्रता आपकी नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं है। ध्यान आ जाए ये कृपा है। अब करुणा क्या है? करुणा, करुणा कंपेनियन, इंग्लिश में यही बोलते हैं ना कंपेनियन, कंपैशन। हाँ,
कंपेनियन तो इन्होंने बनाया है, कंपैशन और ये उसके जो पेडागाजी उसको मिला के कंपेनियन शब्द बनाया है, जो दलाई लामा जी ने अभी हैप्पीनेस कैरिकुलम बनाया है ना। दलाई लामा जी और उनका जो ट्रस्ट है वो और एमोरी यूनिवर्सिटी है यूएस की, तो ये लोग मिल करके एक हैप्पीनेस कैरिकुलम बनाए हैं। उसका नाम रखे हैं सी, सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग, सी लर्निंग, सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग। तो क्या हुआ कि 2 जुलाई 2018 को हमने दलाई लामा जी के को बुला करके और अपने मंच से हैप्पीनेस करिकुलम की लॉन्च कराया। जो हैप्पीनेस करिकुलम की लॉन्चिंग हुई है वो दलाई लामा जी के हाथों हुई है। तो चूंकि बुद्ध परंपरा पहले से ही करुणा के क्षेत्र में, कंपैशन के क्षेत्र में काम करती है, तो वहां से उनको क्लिक हुआ कि हम तो पूरी दुनिया के 121 देशों में काम करते हैं दलाई लामा ट्रस्ट और इन सब चीज के माध्यम से, तो हम भी इसको ले आए। तो वो भी बनाए और वो भी एक्टिविटी और स्टोरी को ही माध्यम बनाए सी लर्निंग के नाम से। तो जब वो लॉन्च कराए अभी 4, 5, 6 अप्रैल 2019 को एरो सिटी दिल्ली में उनका एक 5 स्टार होटल में लॉन्चिंग था, पूरी वर्ल्ड वाइड लॉन्चिंग था, तो वो भी हमारी टीम को बुलाए थे 40 लोगों को, आप भी आइए। तो उनकी किताब का नाम कंपेनियन है, वही मुझे ध्यान आ गया। कंपैशन, करुणा, करुणा क्या है अभी आपसे लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बोलेंगे? हाँ जी। करुणा मतलब सबके प्रति दया, छोटा बड़ा अमीर गरीब बुरा सही सबके प्रति करुणा। और दया किसको बोल रहे हैं? ये दया का विशेष रूप करुणा, युग सबके प्रति, जो अमीर है सुखी है तो दुखी मतलब है। दया कुछ ही लोगों के प्रति? दया तो हमें क्या बोलते हैं कि कभी कभी आती है कि उसको देखकर आती है, वो तो हम करुणा में ही रहते हैं सबके प्रति। बढ़िया। लेकिन आपने बोला दया भाव है, तो भाव कभी कभी वाली चीज ही नहीं है, हमेशा बनी रहती भाव है। भी हमेशा, पर वो क्या बोलते हैं दया को कुछ वस्तु की आवश्यक नहीं, उसको भाव आने के लिए कुछ बहुत अच्छा। पदार्थ की जरूरत पड़ती है ना। करुणा ऐसा है कि हम करुणा में ही रहते हैं, हमें हाँ ठीक फर्क है, नहीं पड़ता। बहुत अच्छा। तो करुणा की सीधी सीधी परिभाषा है, अगर आप देखें आपको प्रस्ताव के रूप में, कि दया प्लस कृपा इज इक्वल टू करुणा। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी पात्रता भी नहीं है और वस्तु भी उसके आसपास उपलब्ध ही नहीं है, समीचीन नहीं है, उसके आसपास नहीं है, वस्तु की खोज हो चुकी है, अनुसंधान हो चुका है, सत्य का अनुसंधान हो चुका है, प्रस्ताव के रूप में अध्ययन विधि में आ चुका है, उसके पास आसपास नहीं है और उसकी पात्रता भी नहीं है। वह आहार निद्रा में भर व्यय प्रजनन में ही लगा हुआ है और उसी को सब कुछ मान के जी रहा है, न तो उसकी पात्रता हो रही है और न उसके आसपास कोई वस्तु ही उपलब्ध है। तो दोनों ही उपलब्ध करा देना करुणा है। इसके लिए दिव्य मानव प्रयास करते हैं, तो करुणा पूर्वक प्रेरणा देते हैं या शरीर चलाने के लिए भी आ जाते हैं। अब मानव की पात्रता भी नहीं है, कोई मॉडल ही नहीं उपलब्ध है और वस्तु भी नहीं है, ज्ञान भी उपलब्ध नहीं है, क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो फिर दिव्य मानव भी शरीर चला के पात्रता विकसित करता है और शरीर चला के वस्तु भी उपलब्ध कराता है। तो करुणा ये सबसे अल्टीमेट, दया प्लस कृपा इज इक्वल टू करुणा। तो ये 6 मूल्य को मानव मूल्य बोले हैं। मानव मूल्य का मतलब इन 6 मूल्यों के साथ जीता हुआ मानव अपनी उपयोगिता को सार्थक करता है। तो ये 3 को मानव मूल्य बोलते हैं, ये 3 को अति मानव मूल्य बोलते हैं। मतलब देव मानव दिव्य मानव का विषय है। दया तक तो मानव का विषय है, धीरता वीरता उदारता दया। कृपा देव मानव का विषय है क्योंकि वह आचरण से आती है, पात्रता हमेशा आचरण से आती है। और करुणा ये दिव्य मानव का विषय है, इसमें आचरण भी चाहिए, संवाद भी चाहिए, बातचीत भी चाहिए, प्रस्ताव भी चाहिए, ये दिव्य मानव का विषय है। तो बोले मानव उपयोगी कब होगा, मानव मूल्यवान कब होगा? जब मानव मूल्य के साथ होगा। भाई पेन मूल्यवान कब है? जब ये लिख पा रहा है। नहीं लिख पा रहा तो क्या करेंगे? अब कल एक पेन था नहीं लिख पा रहा था, तो हमने इनको बताया भैया इसको हटाओ ये उपयोगी नहीं है, मूल्यवान नहीं है।
तो मानव मूल्यवान कब होगा? तो अभी तक मानव मूल्यवान नहीं हो पाया, मानव उपयोगी नहीं हो पाया। मूल्यवान तब होगा जब अपने मूल्य के साथ होगा, धीरता, विदारता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के साथ व्यक्त होगा। और ऐसा व्यक्त कब होगा? जब विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य, प्रेम पूर्वक जी पाएगा, तब धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पूर्वक व्यक्त होगा, प्रस्तुत होगा, उसके आचरण में आ जाएगा, तब मानव उपयोगी हो पाएगा। तो इन 6 मूल्यों को मानव मूल्य बोला। तो अभी कितने मूल्यों की चर्चा हो गई? 18 मूल्य व्यवहार के, 4 मूल्य जीवन के, क्योंकि जीवन उपयोगी होता है जब इन 4 मूल्यों के साथ होता है। 6 मूल्य मानव मूल्य। अब 2 मूल्य बच रहे हैं, ये प्रकृति मूल्य हैं। प्राकृतिक मूल्य 2 हैं। एक है उपयोगिता, दूसरा है कला। तो प्रकृति में जो भी इकाइयां हैं, चाहे वो पदार्थ अवस्था है, चाहे प्राण अवस्था है, चाहे जीव अवस्था है, उसके अंदर उपयोगिता है, वही उसका मूल्य है। उस उपयोगिता को मानव पहचानता है, उस उपयोगिता को मानव पहचानता है, पहचान करके अपने लिए उपयोग में लाता है। और उसमें कला की भी संभावना है तो कला भी लगाता। अगर संभावना है तो लगाएगा, तो उसके अंदर कला की भी संभावना है, ये भी मूल्य है। जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक की उपयोगिता अभी है ही है। अगर वन टाइम यूज प्लास्टिक, और जैसे प्लास्टिक की कुर्सी बना लिया तो उसमें कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो हम प्लास्टिक में खा पी रहे हैं वो गड़बड़ है। या जो पतली पतली झिल्लियां बना रहे हैं और कबाड़ कर रहे हैं और मतलब पुड़ रही हैं हर तरफ, वो गड़बड़ है। लेकिन पेन बना लिया तो कुछ है ही है, उपयोगी है। फिर उसको मोल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर कला क्या है? इसको फिर गला सकते हैं हम, गला करके फिर कुछ और भी बना सकते हैं। ये इसके अंदर कला समाहित है, यानी इसकी उपयोगिता में भी, इसमें उपयोगिता मूल्य भी है और कला मूल्य भी है। जैसे जैसे पेन है, इस पेन की उपयोगिता क्या है? लिखने के काम आएगा, तो इसके अंदर उपयोगिता मूल्य है। अब इसमें कला क्या है? वैसे इसमें लिखने वाली चीज क्या है? रिफिल। ये थोड़ी लिख रहा है, क्या चीज लिखने वाली चीज है? रिफिल। तो आप रिफिल रखो, लेकिन क्यों इसमें लगाया? इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो यहां पे जो प्रेशर आएगा कम एरिया में तो यहां दर्द होगा, इसलिए ग्रिपिंग बढ़िया हो जाए, इसके लिए हमने ये बना दिया। उपयोगिता बढ़ गई। तो कला क्या करती है? उपयोगिता को बढ़ाती है। अब किसी ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन एक रखोगे कैसे? कहीं रखोगे तो इसका ये टिप से कहीं लाइन बन जाएगी, मार्क आ जाएगा। कहीं रखोगे तो गिरेगा तो फिर वहां भी मार्क आ सकता है, कैसे रखोगे? तो फिर बोला इसका कैप बना दो। अच्छा, अब रखिए कहीं, नहीं आएगा। फिर बोले इसको हर जगह ले जाना है तो बैग में डालना पड़ेगा, तो किसी ने ये भी लगा दिया, चलो जेब में रख लो। तो पेन एक्चुअली उपयोगिता है इसकी। अब इसमें जो और चीजें की गई, क्या की गई? कला। तो कला मूल्य को पहचानने वाला भी मानव ही है। जैसे भैया किसी एक बार चर्चा हो रही थी कि बैग, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? आदि मानव काल में ही हो गया था। भाई पहिए के आविष्कार को एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आविष्कार माना गया था कि मानव पहिया को ढूंढ लिया था। पहिए के कारण बहुत सारे काम आसान हो गए, मशीनें बनाना आसान हो गया, बहुत सारे काम आसान हो गए। पहिए का आविष्कार तब हो गया था। और बैग का आविष्कार कब हुआ था? बैग मतलब ये झोला जो हम लेकर के कैरी करके जाते हैं, सूटकेस और बैग, ये भी आज से 100, 150, 200 साल पहले हो ही गया था। लेकिन हम लोग छोटे थे तो बैग में पहिए नहीं होते थे, तो पहिया भी था और बैग भी था। पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो गया था, आदिकाल में, और बैग का आविष्कार भी पुराने समय में हो गया था। लेकिन बैग में पहिया लगा दिया जाए, ये किसी के ध्यान में आया, किसी ने उस कला को भी पहचाना और बैग में पहिया लगा दिया। अब कैरी करना आसान हो गया। तो क्या चीज हो गया? उपयोगिता है। उपयोगिता एक्चुअली बैग की है, सामान बैग में ही आता है।
लेकिन वो सुविधाजनक और हो जाए उसके लिए पहिया लग गया, ट्रॉली लग गई, तो और उपयोगिता बढ़ गई उसकी। तो कला क्या करती है? उपयोगिता को बढ़ा देती है। लेकिन कला भी मूल्य है, क्योंकि संभावना है उसमें, कला की संभावना है, इसका मतलब कला भी मूल्य है। तो जितनी भी प्रकृति की वस्तुएं हैं उनके अंदर उपयोगिता होती है और कला होती है। जैसे गाय का दूध है, तो दूध एक वस्तु है, उपयोगी है, लेकिन कला की क्या संभावना है? उसको जला के मावा बना सकते हैं, पेड़ा भी खा सकते हैं। भाई दूध आप ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, तो आप उसको जला सकते हैं, उसका मावा बना सकते हैं, उसका पेड़ा बना सकते हैं, उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, उसकी दही बना सकते हैं, दही से कढ़ी बना सकते हैं, उसका पनीर बना सकते हैं। दूध की सब्जी नहीं बना सकते, लेकिन दूध से पनीर बना के उसकी सब्जी भी बना सकते हैं। अब ये क्या है? ये कला मूल्य है, उसमें संभावना है तो है, अगर नहीं रहती तो हम नहीं कर पाते। तो जो भी वस्तु है प्रकृति में उसमें उपयोगिता है, उपयोगिता को हम पहचानते हैं, और कला भी है, कला को भी हम पहचानते हैं। तो मानव के अलावा जो भी प्रकृति में वस्तुएं हैं उसमें दो ही मूल्य है, उपयोगिता और कला, उपयोगिता और कला। तो हम उपयोगिता को पहचानते हैं, उसको उपयोगी बनाते हैं, और कैसे उपयोगी हो जाए इसके लिए उसमें कला को ढूंढते हैं और उस कला को लगा करके और उपयोगी बना देते हैं। जैसे माइक, माइक का आविष्कार हुआ एक समय, माइक्रोफोन का। तो क्या होता था? इतना बड़ा सा होता था और ऐसे खड़ा रहता था स्टैंड में, बोलते थे। तब हमको शिविर कराना होगा तो क्या करेंगे? यहां आके लिखेंगे, फिर यहां आके बोलेंगे, फिर आकर के लिखेंगे, फिर यहां आके बोलेंगे। पता चलेगा 1 घंटा बाद तो हमारा बैटरी डिस्चार्ज चलने में ही। तो फिर क्या किया? स्टेज में हमारे, अब आप लोग को चूंकि पता नहीं है बच्चों को, हमारे जो समय के लोग उनको पता है, जब स्टेज शो होते थे तो क्या करते थे? बीच बीच में सब जगह माइक लटका देते थे बहुत सारे, कि जिससे कि कहीं भी बोले तो आवाज जाए। लेकिन अब देखिए, मानव कला पहचानता गया, कला को पहचानता गया। अब ऐसा माइक आ गया, आप चलते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए शिविर करते रहिए, तो शिविर लेना आसान हो गया। तो क्या किया? कला मूल्य को पहचाना। उपयोगिता को तो पहले ही पहचान लिया था जब माइक बनाया था, लेकिन कला को पहचाना। और माइक जैसे आपको बोलना है तो इतनी बड़ी लीड रहती थी, फिर लेके जाते थे, किसी को, कोई उसे उलझ जाता था, किसी के गर्दन पे लगता था, वो गिर जाता था, तो गद्दे के नीचे नीचे तार ले जाते थे, बहुत सारे माइक रखते थे। अब क्या होगा? हैंड फ्री माइक आ गए, लीजिए भैया आप भी बोलिए, लीजिए आप भी पूछिए, लीजिए आप भी पूछिए। तो क्या किया? उपयोगिता को तो पहले ही पहचान चुके थे, अब कला को भी पहचान लिया और वो ज्यादा उपयोगी हो गया। तो अस्तित्व में जो भी वस्तुएं हैं, मानवेतर प्रकृति है, उसमें उपयोगिता है और कला है, उपयोगिता है, कला है, इसको मानव पहचानता है, और ये मूल्य ही है, ये मूल्य ही है। तो ये 2 मूल्य प्रकृति में हैं, ये कुल मिला के 30 मूल्य होते हैं। अस्तित्व में 30 ही मूल्य हैं, 30 ही मूल्य हैं, और केवल 30 ही मूल्य हैं, और ये 30 मूल्य स्वीकृतियां हैं। यही नियम नियंत्रण संतुलन है, यही न्याय धर्म सत्य है। ये 30 मूल्यों से ही न्याय धर्म सत्य तक पहुंचते हैं। इन्हीं 30 मूल्यों के द्वारा हम नियम नियंत्रण संतुलन को पहचानते हैं। यही स्वीकृतियां हैं, यही स्वीकृतियां हैं। इन्हीं को बोला स्वीकृतियों का स्टॉक हाउस, यानी स्वीकृति के भाव में आ जाना, स्वीकृति के भाव में जीना। तो स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। ये संभावना है कि नहीं है? क्योंकि स्वीकृतियां 30 हैं, और ये स्वीकृतियां जो 30 हैं, मूल्य जो हैं, ये सारे जो मूल्य हैं ये रूपात्मक हैं कि अरूपात्मक हैं? उपयोगिता भी रूपात्मक है कि अरूपात्मक है? पानी मैं पीता हूं तो पानी रूपात्मक है, उससे मेरा प्यास बुझता है, ये अरूपात्मक है। मैं खाना खाता हूं, ये उसकी उपयोगिता है, रूपात्मक है, लेकिन उससे मेरा पोषण होता है, ये अरूपात्मक है। तो जितने भी मूल्यों को पहचानेंगे वो मूल्य अरूपात्मक ही हैं, चाहे वस्तु में हो, चाहे मानव के बीच में हो, या मानव में हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ, अस्तित्व सह अस्तित्व है, अस्तित्व सह अस्तित्व है।
और जो भी अरूपात्मक है वो रूपात्मक से ही व्यक्त होता है। तो एक्चुअली व्यापक ही रूपात्मक से व्यक्त होता है, व्यापक ही इकाइयों से व्यक्त होता है। जैसी इकाई है वैसा व्यक्त होता है, जैसी इकाई है वैसा व्यक्त होता है, जैसी इकाई है वैसा ही व्यक्त होता है। तो बोलते हैं वो इकाई अपने धर्म को व्यक्त कर रही है। तो मैं देखता हूं ये तीन इकाइयां, तीन अवस्थाएं जैसी हैं वैसा ही व्यक्त हो रही हैं, अर्थात अपने धर्म को व्यक्त कर पा रही हैं। मानव जैसा है वैसा होने के रूप में है, जीने के रूप में व्यक्त नहीं हो पाया है। तो मानव अपने धर्म को व्यक्त नहीं कर पाया है। इतना ही छोटा सा काम है। उसके लिए हम लोग पिछले 40, 45, 48 घंटे से बात कर रहे हैं। छोटा सा काम है, मानव अपने धर्म को पा जाए, सुखपूर्वक जीने लग जाए, तो क्या होगा? फिर ये साइकिल पूरी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगा। ये लाल बत्ती सारी बुझ जाएगी, पूर्ण हो जाएगा। तो अभी तो अस्तित्व में वर्तन हो रहा है, सब कुछ वर्त रहा है, नित्य वर्त रहा है। जैसे भैया बोल रहे थे, सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है। मानव भी घूम ही रहा है, घूम ही रहा है। लेकिन घूम रहा है, इसका घूमना अभी घूम नहीं रहा है। घूमना इसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन, परावर्तन, समझना, जीना, समझना, जीना। समझ के जी के प्रमाणित कर लिया, अब एकदम फ्री व्हील चल जाती है। अभी तो इतने सारे वो हैं बम्प, क्या रंबलिंग स्ट्रिप, हाँ स्पीड ब्रेकर, बीच बीच में इतने स्पीड ब्रेकर है। प्रिय हित लाभ, आहार निद्रा भय प्रजनन, सामान से सम्मान, सुविधा से सुख, ये सारे स्पीड ब्रेकर हैं जो इसको अभी फ्री चलने ही नहीं दे रहे हैं। जो थोड़ा सा चलते हैं त्यों आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आगे है, ब्रेक लग जा रहा है। और कभी कभी फुल स्पीड में हम उसी स्पीड ब्रेकर पे चले जा रहे हैं, उलट पुलट जा रहे हैं। हाँ, प्रिय हित लाभ में फ्री फुल स्पीड में, आहार निद्रा भय प्रजनन है, फिर फुल स्पीड उसी में लगा दिया, पता चला सब उलट पुलट गया। हमारा भी एक्सीडेंट हुआ गया और पीछे वाले का भी हो गया। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? मूल्य स्पष्ट होता है। तो पहले दिन बोले थे, पहले या दूसरे दिन, शिक्षा का मतलब ही है मूल्य शिक्षा। बाकी सब स्किल है, नियम को समझते हैं। जितने भी चीजें बनाते हैं अपने उपयोग के लिए, सदुपयोग के लिए, वो सब नियम को समझते हैं। वो स्किल है, स्किल है और केवल स्किल है। कितना भी समय लगाएंगे क्या मिलेगा? स्किल मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई वस्तु मिलेगी, कोई वस्तु मिलेगी। वस्तु से हमको निरंतर सुख नहीं मिल सकता। तो जब भी शिक्षा की बात होगी तो मूल्य शिक्षा की बात होगी। और मूल्य 30 ही है, केवल 30 है, केवल 30 है। जो भी इसके अलावा आप बात लेके आएंगे वो इसी 30 में जाएगा। तो पहले दिन से आपको क्या लग रहा है? धीरे 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 करके समझ की वस्तु इतना ज्यादा नहीं है। 3 क्रियाएं हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। 4 अवस्था है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। 3 सच्चाइयां हैं, नित्य वस्तु है, अमर वस्तु है, अविनाशी वस्तु है। 30 मूल्य हैं, 18 व्यवहार में है, 4 जीवन मूल्य हैं, 6 मानव मूल्य हैं, 2 प्रकृति मूल्य हैं, उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य और सह अस्तित्व बना हुआ है। तो संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व है, संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व है। इतना समझ में आता है तो मूल्य समझ में आता है तो हम मूल्य पूर्वक जीते हैं। तो मेरा आचरण मूल्य पूर्वक हो जाता है। ये मानवीयतापूर्ण आचरण का हिस्सा है मूल्य। लेकिन केवल मूल्य पूर्वक ही मानवीयतापूर्ण आचरण पूरा नहीं होता। ये उपयोगी कैसे होता है? जब हम चरित्र पूर्वक जीते हैं। तो चरित्र में क्या आता है? 3 चीजें आती हैं। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये 3 को मिला करके इस कंटेंट में चरित्र बोला गया है। तो मैं चरित्र पूर्वक जीता हूं। स्वधन का मतलब, स्वधन का मतलब
तो यहां 3 प्रकार के स्वधन बताए गए हैं। प्रतिफल, परितोष और पुरस्कार। ये 3 प्रकार से प्राप्त धन ही स्वधन है, बाकी सब परधन है। प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब मैंने कोई श्रम किया है, उसके बदले में मुझे कोई वस्तु उपलब्ध हुआ है, वो प्रतिफल है। जैसे मैं खेत को जोतता हूं, बढ़िया से बराबर करता हूं, उसमें बीज डालता हूं, बीज डाल करके उसका ध्यान रखता हूं, वो उगता है, समय पर पानी मिल जाए, खाद मिल जाए, उसकी देख रेख किए, जानवरों से और चीजों से सुरक्षा भी कर लिए, सब करने के बाद वो प्रकृति में हमको कुछ मिलता है, वो मेरा प्रतिफल है। फिर आपने जैसे गेहूं उगाया और मैं उस गेहूं को ले आया और उस गेहूं को मैं अपने यहाँ मशीन में दलिया बनाया, सूजी बनाया, आटा बनाया, उसको पैक किया और आपको दिया। ये देते समय मैं लाभ हानि मुक्त विधि से दे रहा हूं। लाभ हानि मुक्त का मतलब जितने का मैं गेहूं ले आया था उसमें मैं अपना श्रम मूल्य का मूल्यांकन मैं ही करूंगा, दूसरा नहीं करेगा। मैं अपना श्रम मूल्य लगाता हूं और जो बिजली खर्चा हुआ है मशीन में, जो लेबर मतलब जो कुछ भी लगा है, वो सारी चीजों को ऐड करके मैं उसका मूल्य निर्धारित करता हूं और आपको बताता हूं, देखो जी ये 30 रुपए का पैकेट का दलिया है, तो भी प्रतिफल ही है। मैं आपके यहाँ काम करता हूं, आपके यहाँ कोई काम ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके यहाँ काम ऐसा है जो आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे मानव लग रहे हैं, तो बहुत सारे मानव लग के उस काम को कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, उसके बाद शाम को आप उनको कुछ दे रहे हैं या महीने में कुछ दे रहे हैं, प्रतिफल ही है। तो परिश्रम से जो उपलब्ध होता है वो प्रतिफल है। मतलब आप श्रम करते हैं, उसके प्रतिफल मतलब प्रति में जो मिलता है, आप श्रम करते हैं उससे जो उपलब्ध होता है वो प्रकृति से भी उपलब्ध हो जाता है, श्रम से या किसी मानव से उपलब्ध होता है, वो सारा प्रतिफल है। तो प्रतिफल स्वधन है। अब जो मेज के नीचे से मिलता है वो कोई प्रतिफल नहीं है, उससे कभी मानव तृप्त भी नहीं होता है। न देने वाले को, देखिए, न तो घूस देने वाला खुशी पूर्वक, दोनों भय में रहते हैं। घूस देने वाला भी भय में रहता है, घूस लेने वाला भी भय में रहता है, तो किस बात की तृप्ति हुई है? पता नहीं कब एंटी करप्शन वाले आ जाएं। बोलते रंगे हाथों पकड़ा गया। रंगे हाथों मतलब जानते हैं क्या होता है उसमें? तो एंटी करप्शन या पुलिस अगर किसी को रंगे हाथे पकड़ना है तो स्टिंग करती है, और उसमें नोट क्या करती है, उसमें कुछ कलर लगा के, उसमें कलर इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता, पाउडर होता है, उसमें लगा के और दे देती है। आप उस नोट को पकड़ते हैं, आपका हाथ रंग जाता है, तो बोलते हैं जी रंगे हाथों पकड़ा गया। यही है उसके पीछे, इसीलिए रंगे हाथ बोलते हैं। ऐसा पुलिस पहले किया करती थी, अब तो वो सारा आ गया, वो सीसीटीवी और वो हिडन कैमरा और सारी चीजें स्टिंग ऑपरेशन में। पहले रंगे हाथ से स्टिंग ऑपरेशन होता था, क्योंकि सबूत ही नहीं मिलेगा। अरे बोल देगा पता नहीं, हमने तो लिया ही नहीं है। तो बोलते हैं देखो जी हम रंग लगा के दिए थे और आपके हाथ में वही रंग है। तो नोट के, तो फोरेंसिक लैब में जाता था तो नोट के ऊपर का जो रंग है वही इनके हाथ के ऊपर का रंग है, इसका मतलब आप ही लिए हो। तो क्या है, वो स्वधन नहीं है, उसमें भय रहता है। जैसे ही स्वधन से हटेंगे अपराध में जाएंगे, उसको अपराध बोला गया, अव्यवस्था बोली गई। उसी तरह से परितोष भी स्वधन है। परितोष का मतलब, तो जब मेरा बेटा हुआ 2007 में, तो मैं शिविर में विद्या में आने लगा था, तो बाबा से तो बात नहीं तब उतना हो पाती थी। साधन भैया से पूछे कि इसका क्या नाम रखें, तो बोले आप उसको पाके खुश हुए हैं। हमने कहा भाई संतान पाने का मतलब अगली पीढ़ी आ रही है, मतलब मानवीय परंपरा धरती पे बनी रहेगी शरीर की कम से कम, तो खुशी की बात है। तो बोले इसका नाम परितोष रख दीजिए। तो उसका नाम हमने परितोष रख दिया। परितोष क्या है? तो परितोष खुशी को ही बोलते हैं।
तो खुश हो करके किसी को कुछ देना, पुरस्कार और परितोष में अंतर है। क्या अंतर है? पुरस्कार क्या चीज है? हेलो, प्राइज। हाँ जी, बोले? पुरस्कार यानी क्या बोले फरीद दोहरायन? पुरस्कार और परितोष यानी उपहार। परी उसको पुरस्कार और उपहार, गिफ्ट। प्राइज और गिफ्ट में क्या अंतर है? पुरस्कार और समझ नहीं पड़ा। प्राइज, किसी को प्राइज देते पहले हैं। तो हिंदी में बोले थे वही बोलो। अच्छा, पुरस्कार और परितोष। पारितोष। हाँ, हाँ, पारितोष का मतलब पुरस्कार से हम किसी को पारितोष करते हैं, यानी कि पारितोष मतलब किसी की सेवा ली या किसी की अच्छाई हमें पसंद आई और हम हमारी खुशी के लिए उसको जो देते हैं वो पारितोष के लिए ऐसा। और पुरस्कार यानी कि हमें मिला पुरस्कार तो उसने उसकी खुशी के लिए ही दिया। दोनों हम तो सेम ही है लेकिन कुछ डिफरेंट है, समझ में नहीं आता। बढ़िया, ठीक है। और कोई? अंग्रेजी में, हाँ जी, माइक दीजिए उधर। अंग्रेजी में इसको गिफ्ट एंड प्राइज बोलते हैं। तो गिफ्ट और प्राइज में क्या अंतर है? को अभिनंदित करने के लिए दे जाता है, खास करके कुछ काम अच्छा किया है कि उसके लिए। बढ़िया। और गिफ्ट है वो किसी को खुश करने के लिए दे जाता है, इसने कुछ काम किया है नहीं किया है, जैसे बर्थडे पे देते हैं, कुछ फंक्शन है तो देते हैं, वो गिफ्ट है। हाँ, ठीक है, बढ़िया। तो हेलो। ऐसी ही बात लगभग आएगी सबकी, जितनी भी देर करेंगे। गिफ्ट बदले में देते हैं उसको खुश रखने के लिए, वो गिफ्ट है। और क्या बोले दूसरा? प्राइज। प्राइज। प्राइज मतलब का हमें उसकी देना ही चाहिए। गिफ्ट हम दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड प्राइज कि उसकी प्राइज है कि उसकी ये सेवा है तो उसके लिए वो निर्धारित प्राइज है, वो हमारा फर्ज बनता है तो हम देते हैं। और गिफ्ट होए ये हमारा फर्ज नहीं बनता, हम ठीक, देते हैं बढ़िया। अपनी मर्जी से। हाँ जी, पुरस्कार मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हमारी योग्यता हो गई है और उसको जिसे हम जिसको पाते हैं उसको पुरस्कार कहेंगे, मेरी योग्यता है। और हाँ। उपहार मीन्स मेरे को कुछ मिला हुआ है कि मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ या खुशी से किसी ने मुझे दिया है। बहुत बढ़िया। तो इसमें मुख्य मुद्दा खुशी ही है। नहीं कर देते हैं। पुरस्कार क्या है? सबने लगभग बिल्कुल ही करीब पहुंच गए हैं सभी लोग। पुरस्कार क्या है? किसी ने कुछ किया है, अच्छा काम किया है, मानवता के अर्थ में, मानवता के अर्थ में कुछ अच्छा काम किया है, उससे हम खुश होते हैं और खुश है कि कुछ देते हैं कोई वस्तु। ये हुआ पुरस्कार, परितोष। अरे पुरस्कार कि तो उसमें उसका कुछ करना जरूरी है तब हम देते हैं, कुछ किया है तो देते हैं, तो बोलते हैं इसको प्राइज दिया। परितोष में क्या होता है? मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे मैं अपने मामा के यहाँ गया और गया, हमारी छुट्टी थी, मैं गया, चलते समय मेरे मामा मामी ने मुझे कुछ पैसा दिया, मुझे कुछ कपड़े दे दिए, ये परितोष है। आपके यहाँ कोई शादी पड़ा, बेटे की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, कोई उसका मुंडन हुआ, कोई और संस्कार हुआ, उसमें आपके बहुत सारे मेहमान आए। अब आप उस अपनी घटना से खुश हैं और जितने मेहमान आए हैं उनको कुछ दे रहे हैं, ये उपहार है, ये परितोष है। ये तो क्या चीज है? ये दोनों ही स्वधन है। अब देखिए भाषा कैसे बदलती है। अब जैसे मेरे भी दो, एक बेटी और एक बेटा है, तो मामा के यहाँ, मौसा के यहाँ या गोरखपुर जाते हैं तो माता पिताजी वहाँ हैं, चाचा चाची जी हैं, या दिल्ली में किसी के घर गए, कोई शादी विवाह हुआ तो कोई कुछ पैसा दे दिया तो ले आके रखते हैं। तो कहाँ रखते हैं बच्चे पैसा? हैं? सामान्यतः, हाँ, तो सामान्यतः माँ के पास रखते हैं। तब माँ के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो अगला अलग बैंक बना लिए। तो सामान्यतः बच्चे माँ के पास ले आके रख देते हैं, माँ ये रख लो, तो बात खत्म हो गई। जब से शिविर विर हुआ
एक दिन बेटा बोलता है, मां मेरे पास आपके पास मेरा 700 रुपए स्वधन है। मेरा स्वधन 700 रुपए आपके पास है। तो एक्चुअली वास्तव में वो स्वधन है। तो बच्चों का स्वधन वही है जो उनको परितोष मिला है, जो उनको पुरस्कार मिला है। तो बच्चों के पास भी स्वधन होता है। वो पैदा होते हैं उसी समय से शुरू हो जाता है। उसकी छठी संस्कार, छठी बरही, ये वो सब उनको कपड़ा दे रहा है, पैसा दे रहा है, गिफ्ट। तो स्वधन में वो भी रहते हैं। मतलब स्वधन है उनके पास, रहते नहीं है वो अलग बात है, स्वधन उनके पास भी है। तो कुल मिला के जो परितोष है, पुरस्कार है और प्रतिफल है, ये तीनों स्वधन है। इन तीनों से हटे किसी अन्य प्रकार से धन ले आ रहे हैं, वो परधन है, वो अपराधी है। वो आपको भी तृप्ति नहीं देगा और जहां से प्राप्त कर रहे हैं किसी शोषण विधि से, वो तो अतृप्त रहने ही वाला है। तो जब भी आपका आचरण मानवीयतापूर्ण होगा, जो आपके लिए भी तृप्तिदायक होगा, दूसरों के लिए भी तृप्तिदायक होगा, वो स्वधन में जीने पर ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए इसको मानवीयतापूर्ण आचरण का हिस्सा बोले हैं स्वधन को। उसका दूसरा हिस्सा है स्वनारी स्वपुरुष। ये क्या चीज है? स्वनारी स्वपुरुष क्या चीज है? लो, सब चुप हो गए। हेलो, हाँ जी। इक्कीस है लेकिन दिखने में अलग है, लेकिन जीवन में दोनों एक है। हाँ, जीवन तो भी अलग ही है, जीवन भी। जीवन अलग है लेकिन वास्तविकता एक है, वो तो उसकी समझ अलग अलग है। समझ अलग नहीं होती, मान्यता अलग होती है। समझ एक ही होती है। यानी कि मान्यता अलग है, बढ़िया। समझ में अलग अलग हुए कि उसकी। हाँ, तो ये परिभाषा है, पति पत्नी की परिभाषा है। पति पत्नी का मतलब होता है एक मन दो शरीर। एक मन दो शरीर, ये मैं परिभाषा भूल गया था, भाई ने ध्यान दिला दिया। पति पत्नी की परिभाषा है एक मन दो शरीर। एक मन का मतलब जीवन एक नहीं, विचार एक। विचार एक कब होगा? जब सही के अर्थ में होगा। गलत के अर्थ में एक, तो बोले मानव गलती में अनेक, सही में एक है। तो आपका विचार है, मेरा विचार है, इनका विचार है, उनका विचार है, वो अलग ही होगा। सही विचार है, एक ही होगा। तो समझ पूर्वक जब विचार होता है तो एक होता है, तब हम बोल सकते हैं पति पत्नी का मतलब ये हुआ एक मन दो शरीर। ऐसे संबंध में जीने को स्व पुरुष स्व नारी बोल रहे हैं। तो हम एक पुरुष शरीर हैं, कोई नारी शरीर है। व्यवस्था के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में धरती पे मानवीय परंपरा बनी रहे, और मैं समझदार हो जाऊं, और मेरे सामने जो मेरा आने वाला संतान है वो भी समझ के रास्ते पे चला जाए, वो भी अनुभव संपन्न प्रमाणित हो जाए। इसके लिए सैकड़ों लोगों के सम्मुख सभा में एक दूसरे के साथ साथ जीने का तय करते हैं। उस समय से हम स्व पुरुष स्व नारी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार लेते हैं। इस घटना का नाम विवाह है। तो विवाह प्राकृतिक घटना है, अप्राकृतिक नहीं है। प्रयोजनपूर्ण है, प्रयोजनहीन नहीं है। इसमें एक पुस्तक पढ़ेंगे, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, तो उसमें विवाह परंपरा के बारे में पूरा 20 पेज लिखा हुआ है कि मानवीय परंपरा में विवाह कैसे होगा। तो कुछ अलग नहीं कर्मकांड दिया है। सारा कर्मकांड करेंगे, जो भी करना है करिए, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन सभा बैठेगी, इधर वधू पक्ष बैठेगा, इधर वर पक्ष बैठेगा। वर पक्ष में भी दो पक्ष होते हैं, एक वर के पिता के पक्ष होते हैं, एक वर के माँ के पक्ष के होते हैं। वधू में भी दो पक्ष होते हैं, वधू के पिता के पक्ष और वधू के माँ के पक्ष। तो वो दोनों पक्ष उधर बैठेगा और ये दोनों इन्हीं को रिश्तेदार बोलते हैं आपस में। तो दोनों के रिश्तेदार आमने सामने बैठेंगे। उस समय वधू का पिता खड़ा होगा और अपने वधू को के बारे में बताएगा,
अपनी बेटी के बारे में बताएगा, ये मेरी संतान है जो कि मेरे कुल में, मेरे वंश में पैदा हुई है। समझ के रूप में इसने अपने जिंदगी के 20 साल 18 साल जो हैं शरीर यात्रा के, उसको पूरा करते समय इसने समझ को प्राप्त कर लिया है, ये अनुभव संपन्न हो गई है। अब प्रमाणित करने के लिए आपके जो पुत्र हैं, जो वर हैं, इनको स्वीकारना चाहती है। अब इनके साथ आगे अपना जो समझा है उसको जी के प्रमाणित करने के लिए अब साथ साथ यात्रा शुरू करना चाहता है। ऐसा कह के वधू के पिता वर के पक्ष की तरफ फूल की पंखुड़ियां डालते हैं। फिर वर के पिता खड़े होते हैं, वो भी ऐसी घोषणा करते हैं कि मेरी संतान जो मेरे स्कूल में पैदा हुई है, उसने समझ को प्राप्त कर लिया है, वो अनुभव संपन्न हो चुका है। अब उसको प्रमाणित करने के लिए और आगे धरती पे मानवीय परंपरा के लिए अब ये दोनों साथ साथ जीना स्वीकारते हैं। ऐसा बोल के वो उनके तरफ पुष्प की वर्षा करता है। फिर वधू खड़ी होती है, वर खड़ा होता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और घोषणा करते हैं, हम समाधान संपन्न हो चुके हैं, अनुभव संपन्न हो चुके हैं। आगे की हमारी यात्रा साथ साथ है, जो कि प्रेम मूल्य पाने के लिए है। हम विश्वास से प्रेम की यात्रा अब साथ साथ करेंगे। ऐसा बोलते हुए वर वधू के गले में माला डाल देती है और वधू वर के गले में माला डाल देता है और दोनों स्व पुरुष स्व नारी उस समय स्वीकार लेते हैं। धन्यवाद। अभी क्या हुआ? विवाह हो गया, इवेंट हो गया। विवाह क्या है पता ही नहीं है, क्यों हो गया? तो मैं भी बच्चा ही था जब विवाह हो गया, और मेरे बच्चे भी बच्चे ही हैं, हमने विवाह कर दिया। बच्चा मतलब समझ कुछ हुआ ही नहीं, विवाह संबंधी नहीं पता क्यों है। हिमांशु भाई बहुत हंस रहे हैं। हाँ, बच्चों ने बच्चों का विवाह कर दिया, हो गया। तो सब गुड्डे गुड़िया का खेल ही जिंदगी भर खेलते हैं। गुड्डे गुड़िया का खेल आपके यहाँ होता है? अब तो खत्म हो गया। देखिए पहले गांव में टीवी भी नहीं था तो ये सब खेल होता था। गुड्डे गुड़िया बनाते थे, फिर उन गुड्डे गुड़ियों की शादियां भी कराते थे। होता था आपके यहाँ? नहीं। तो अभी हम लोग गुड्डे गुड़ियों का खेल ही खेल रहे हैं, विवाह नहीं कर रहे हैं। तो विवाह घटना बड़ी हो गई। तो जब मैं बीएससी में पढ़ता था तो अखबार में खबर पढ़ा कि बंबई में एक उद्योगपति ने, व्यापारी ने अपनी बेटी का शादी किया। दो व्यापारी खानदान के बीच में रिश्ता हुआ और वो शादी 5 करोड़ में संपन्न हुई। 93 में 5 करोड़ छोटी रकम नहीं होती थी। आज जब 5 करोड़ बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन उस समय में 5 करोड़ रुपया सुने तो हम लोग सोचे क्या शादी हुआ होगा। 5 करोड़ में शादी हुआ। पता चला शादी का कार्ड जो उन्होंने भेजा था, सबको सूटकेस में भेजा था, तो उसमें कार्ड था और उसमें एक एक सोने की अंगूठियां भी थी। तो जब उसमें डिटेल न्यूज को पढ़ा तो ये था, तो कार्ड से ही शुरुआत हो गया था खर्च का। तो ऐसे शादी हुआ। 4 महीने बाद अखबार में पढ़ा वो जो 5 करोड़ की शादी थी वो टूट गई। तो हमने इवेंट को बड़ा बनाना सोच लिया। इवेंट बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? जितना इस इलाके में कोई नहीं किया होगा, हम उतना बड़ा इवेंट करेंगे। और कर क्या रहे हैं? 2 बेवकूफों की शादी कर रहे हैं। जो जिंदगी भर लड़ेंगे। अगर लड़के झेल ले गए तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट कचहरी में जाके अलग हो जाएंगे। तो हमने ज्ञान के क्षेत्र में काम नहीं किया, विवाह संबंध को समझाने में काम नहीं किया। अगर विवाह संबंध समझ में आ गया, स्व पुरुष स्व नारी समझ में आ गई, व्यवस्था समझ में आ गया, अस्तित्व समझ में आ गया, तो विवाह तो 2 घंटे का काम है, कर दीजिए, हो गया। विवाह जीने के लिए है, जीना बन नहीं पा रहा है। विवाह का घटना बड़ा हो गया तो क्या करेंगे? केवल जिंदगी भर विवाह का फोटो ही दिखाते हैं। ये देखो मेरा विवाह का फोटो, ये देखो कितना बढ़िया था, देखो कितना इवेंट था, ये देखो खाने का स्टॉल कैसा था, देखो ये वैरायटी कितनी थी, देखो मंडप कैसा सजा था। और जीते कैसे हैं? तुम मुझको नहीं समझ सकते, तुम मुझको नहीं समझ सकती। इस जिंदगी में तो नहीं समझ सकते, इस जिंदगी में तो नहीं समझ सकती। तुम्हारे साथ जीना तो बिल्कुल नरक है। और संबंध क्या हुआ? इतने बड़े टेंट लगा के 1000 लोगों को बुला के और पूरा घटना। अब देखिए सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, सबको अपनी याद आ रही है। तो भैया उसी को स्व नारी स्व पुरुष कह रहे हैं।
जिनको हमने अपने स्वभाव में स्वीकारा था कि मेरी स्व नारी है, ये मेरा स्व पुरुष है, इससे अलग हटिए, उसी को अपराध बोलते हैं। स्व नारी स्व पुरुष नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पर नारी पर पुरुष करेंगे, अपराध में जाएंगे। तो जो भी मानवीयतापूर्ण आचरण है उससे हटेंगे, अपराधी है। चरित्र का मतलब ही है कि मैं स्वधन में हूं, स्वधन से हटे तो परधन में गए, अपराध। स्व नारी स्व पुरुष से हटे पर नारी पर पुरुष में गए, अपराध। अब हम पर नारी या परधन में जाते क्यों हैं? क्योंकि हमने आहार निद्रा भय प्रजनन को सब कुछ मान लिया है, तो हम वैरायटी क्वांटिटी में जाते हैं। उसके लिए हम परधन में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको बहुत सारा चाहिए। पर नारी पर पुरुष में क्यों जाते हैं? वैरायटी में जाते हैं। मतलब कपड़े में तो आदमी में वैरायटी में जाते हैं। तो पिता से नहीं पसंद है तो पिता भी बदलो। आजकल टीवी में विज्ञापन आता है, तो क्या करूं, मां बदल दूं, ऐसा विज्ञापन आपने सुना है? कोई बच्चा खेल के आता है, थोड़ा गंदा हो जाता है। देखिए, सभा में बात को रखने के लिए हमको भी टीवी देखनी पड़ती है, भाई उसमें क्या आता है देखना पड़ता है। तो बोलते थे क्या करूं, मां बदल दूं? तो बोलता नहीं, डिटर्जेंट बदलो। तो मां नहीं बदलना है, डिटर्जेंट बदलना है। और ये डिटर्जेंट वही है जो 6 दिन से चल रहा है, ये डिटर्जेंट है। इसमें धुलिए अपने को, धुलेंगे तो कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप मानव हैं, और मानव है तो मानवीयतापूर्ण आचरण को जब तक पा नहीं लेगा तब तक वो तृप्त होने वाला ही नहीं है। आप भी नहीं होंगे, जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं वो भी नहीं होगा। ये है स्व नारी स्व पुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो इसकी चर्चा दया में हो गई है। तब मैं जब जीता हूं, मानव के साथ जीता हूं, तो दयापूर्वक जीता हूं, दयापूर्वक जीता हूं। अर्थात मैं मानव की पात्रता को पहचान करके उसके अनुसार उसके साथ आचरण करता रहता हूं। अभी हम पात्रता को पहचाने बिना ही आचरण करते हैं। तो जो कह रहे थे, नियति कल कह रही थी कि ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेना किसी से, ये ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्या है, अति अपेक्षा क्या है? हमको उसकी पात्रता का ही पता नहीं है। जिसके साथ हम जी रहे हैं उसकी पात्रता का पता ही नहीं है, और हम उसमें दबाए जा रहे हैं। ये भी करो, वो भी करो, ये भी समझो, वो भी समझो, तुम नहीं समझ सकते, फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो। अरे पढ़ो, पढ़ लोगे, पढ़ो, और क्या। तो सांगल साहब IIT BHU के डायरेक्टर रहे, अब रिटायर हो गए। वो बताते हैं जब बच्चों का ओरिएंटेशन होता है तो उनसे जब पूछा जाता है इसमें कितने बच्चे हैं जो कि अपनी इच्छा से IIT में नहीं आए हैं, पूछते इसमें कितने बच्चे हैं जो अपनी इच्छा से IIT में नहीं आए हैं। राजू सांगल साहब बता रहे थे जब IIT के डायरेक्टर थे BHU के, तो बोलते हैं 40 से 45% बच्चे बोलते हैं हम अपनी इच्छा से नहीं आए। मेरे पिता का मन था, मेरे मामा का मन था, मेरी मामी का मन था, मेरे चाचा का मन था। एक हमारे मित्र हैं गोरखपुर में, वो बड़े व्यवसायी हैं, तो अपनी बेटी का BA LLB में एडमिशन कराए। तो आए थे दिल्ली में, जब नोएडा में एडमिशन कराने तो हमारे घर पे रुके थे। तो हमने कहा बेटा आपका क्या मन है? बोले मेरा मन तो बायो में पढ़ी थी, तो मेरा बायो ही पढ़ने का मन था। तो हमने कहा क्यों BA LLB में गई? बोले मेरे मामा जी रांची में रहते हैं, वो बार बार प्रेशर डाल रहे हैं पिता के ऊपर कि देखो आज वो जमाना बदल गया है, आज वो मेडिकल में वो चीज नहीं रह गया, इसको BA LLB कराओ। तो किसी मामा के कहने से, बुआ के कहने से, फूफा जी के कहने से, चाचा के कहने, बच्चे से पूछा ही नहीं गया, उसके योग्य माना ही नहीं गया आप क्या पढ़ना चाहते। तो पात्रता को समझे बिना हम आचरण नहीं कर सकते। पात्रता को समझते हुए आचरण करते हैं, उसी को दयापूर्ण कार्य व्यवहार कहते हैं। तो मैं जो ओवर एक्सपेक्टेशन किसी से करता हूं, अति अपेक्षा करता हूं, उसका मतलब ही यही है कि मैं पात्रता को पहचाना नहीं हूं और व्यवहार कर रहा हूं। तो मानवीयतापूर्ण आचरण में 3 चीजें आती हैं: मूल्य पूर्वक जीना, चरित्र पूर्वक जीना, और नैतिकता की बात अभी चाय पी के करेंगे। देखें चाय पीने से नैतिकता आती है कि नहीं। चरित्र का मतलब ही है स्वधन पूर्वक जीना, स्व नारी स्व पुरुष पूर्वक जीना, दयापूर्ण कार्य व्यवहार पूर्वक जीना। मैं स्व नारी स्व पुरुष से हटा क्यों? पूरी दुनिया में जो अपराध में जा रहे हैं ऐसा हुआ क्यों? पर नारी पर
पर नारी पर पुरुष में गया क्यों? क्योंकि मुझे मैं सुखी नहीं हो पाया, तो मुझे लगा सुखी होने का कोई और तरीका है, मैं उसमें चला गया, बहुभोगति भोग में चला गया। ये अपराध है। बाद में सबको जिसने किया उसको भी पीड़ा होती है, जिसके साथ हुआ उसको भी पीड़ा होती है, कोई उसमें तृप्त नहीं होता, लेकिन लगे हुए हैं, समझ ही नहीं है। ये वाला डिटर्जेंट ही नहीं है, ये वाला डिटर्जेंट ही नहीं है जिसमें धुला जाए। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा शिविर कर रहे हैं। चाय पी के आते हैं। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी।